Okay, so good morning, everyone, and welcome to the morning session of our day 7 of the online component of the training program. And the morning session of today's are on the topic of appraisal of water resources projects. And to deliver these sessions, we have with us Shri S.P. Singh sir. Sir is Director in Monitoring and Appraisal Directorate of CWC in Pune. Just to briefly introduce sir, sir is a CWS officer of 2008 batch. Sir did his graduation in civil engineering from BIT Jhansi, and also he holds MTech degree in hydraulics and water resource engineering from IIT Kanpur. Before joining CWC, sir was there as engineer in ONGC, where he served for about 5 years. And sir joined as assistant director in CWC in the year 2011, though initially sir was posted in the Central Electricity Authority as assistant director and thereafter as deputy director as well. And thereafter sir also served as deputy director in Monitoring and Appraisal Directorate of UGBO at Lucknow. And in the year 2020, sir got posted as deputy director in NWA Pune. And last year, in fact, in 2024, upon promotion to the director level, sir got posted as director in Monitoring and Appraisal Directorate of Monitoring Central Organization of Nagpur, whose office is here in Pune. So with this brief introduction, I welcome Shri S.P. Singh sir to this training program. And now I request sir to, sir, please take this session forward. Over to you, sir. I request all the participants to please switch on your cameras, please. Thank you, Saurabh. Thank you for giving me opportunity to talk with the future generations of Central Water. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. हमारे CWC में सबसे जो क्रिटिकल पोस्ट होता है, की पोस्ट होता है, वो होता है जूनियर इंजीनियर्स का, बिकॉज वी ऑल रिलाई ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय देम। और जहाँ भी जो भी मेन फील्ड में जो काम होता है तो उसकी देख रेख हमारे जूनियर इंजीनियर से करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि CWC का जो सबसे की पोस्ट होता है, क्रिटिकल पोस्ट होता है, वो एक जूनियर इंजीनियर्स का होता है। और अभी तक 41 पार्टिसिपेंट्स में से केवल 36 पार्टिसिपेंट ने ही ज्वाइन किया है। ये थोड़ा सा वरी कर रहा है, क्योंकि अभी ये माना कि ये ऑनलाइन सेशन है, बट इसका भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग बात करते हैं, आप सबके लिए ही बात करते हैं, क्योंकि from here onwards you are going to promote and you are going to serve at the next level. From there you have to be you have to give your output. In many of you will be posted in headquarter, many of you will be posted in Monitoring and Appraisal Directorate, and it is department wants output from you. So मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियरिटी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चलो अभी तो 40 हो गए, 38 हो गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अप्रेजल ऑफ इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ये टॉपिक CWC के काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CWC का मेजर वर्क है अप्रेजल ऑफ इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ द CWC अप्रेजल ऑफ इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या क्या जानते हैं अप्रेजल के बारे में, और हमारा CWC में प्रोजेक्ट्स के अप्रेजल कहाँ पे होते हैं और कौन करता है, इस बारे में कुछ जानकारी है आप लोग को? तो थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के अप्रेजल CWC में कहाँ पे होते हैं, बताएंगे कोई आप लोग?
अरे स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं सब, जो सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट की फंडिंग होती है वही प्रोजेक्ट होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि जिनकी फंडिंग होती है उन्हीं का अप्रेजल करते हैं। अप्रेजल के लिए जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं उन सबका अप्रेजल करते हैं। फंडिंग तो सेकेंडरी पार्ट है, अप्रेजल के बाद का प्रोसीजर है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी से लोन लेना होता है या फिर उनको कहीं से और से भी जैसे उनको नाबार्ड से लेना है लोन या फिर उनको कहीं और से फंडिंग लेनी होती है तो भी अप्रेजल की जरूरत होती है उसकी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है तभी अप्रेजल हो उसका। और दूसरा, बहुत सारे इंटर स्टेट मैटर्स होते हैं या बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं सॉल्व करता, वो सेंटर के परव्यू में आता है। इसके लिए भी सेंटर से अप्रेजल की जरूरत होती है उन प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अप्रेजल सीडब्ल्यूसी में कहाँ पर होता है, कौन सा विंग है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रेजल करता है। कॉस्ट अप्रेजल डायरेक्टरेट। कॉस्ट अप्रेजल डायरेक्टरेट है, ठीक है। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? सब सही है, आप लोग बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कॉस्ट अप्रेजल डायरेक्टरेट भी अप्रेजल का पार्ट होता है, ओवरऑल अप्रेजल का पार्ट होता है कॉस्ट अप्रेजल भी, ठीक है। और कोई? देखिए, ये सेशन पूरा इंटरेक्टिव होने वाला है, मुझे दो। मॉनिटरिंग एंड अप्रेजल विंग हाँ, मॉनिटरिंग अप्रेजल डायरेक्टरेट जो कहाँ, हेडक्वार्टर में है या फील्ड में है मॉनिटरिंग अप्रेजल डायरेक्टरेट? है, फील्ड में ही है सर, जैसे फील्ड में सर। अलग अलग बेसिन ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, बिल्कुल। जो मॉनिटरिंग अप्रेजल डायरेक्टरेट है वहां पे भी कुछ प्रोजेक्ट से अप्रेजल होते हैं। डब्ल्यूपीएनपी विंग होता है, एक डिजाइन विंग होता है। हाँ हाँ, तो अप्रेजल के लिए कौन जिम्मेदार है? सर मुझे लगता है डब्ल्यूपीएनपी मतलब जो होते हैं वो। हाँ, डब्ल्यू पी विंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं PAO, प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन। सुना है कभी आप लोगों में से किसी ने? जी सर, एक बार सुने हैं सर थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल जानते नहीं उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। तो हमारे CWC हेडक्वार्टर से कोई है क्या इसमें आप लोगों में? नहीं, कोई लिस्ट में कोई दिख तो नहीं रहा हेडक्वार्टर से। चलो ठीक है, नहीं है। विजय गुप्ता, विजय गुप्ता जी हैं? आप सब लोगों में विजय गुप्ता जी हैं क्या? ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया है क्या? विजय गुप्ता, हाँ विजय गुप्ता ही है, CWC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो हमारे CWC हेडक्वार्टर में बहुत सारे विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनका काम है बेसिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल करना, ठीक है। और जो अप्रेजल डायरेक्टरेट है फील्ड ऑफिसर्स में, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अप्रेजल के को लेके। वो सब बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट का फील्ड में अप्रेजल होता है, कौन से प्रोजेक्ट का अप्रेजल जो होता है वो हेडक्वार्टर में होता है, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, अप्रेजल के कितने प्रोसेस होते हैं, अप्रेजल किस किस स्टेजेस में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर दैट एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू ऑल विल बी एबल टू नो what is the appraisal process and how it is done in CWC, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी आंसर लगे, मतलब सारे जेनेरिक क्वेश्चंस हैं रहेंगे, और जो भी आपको बनता है, जो भी समझ में आता है, आप इंटरेक्ट करते रहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप को आपके मुझे मतलब जरूरी नहीं कि हर बात आपकी सही हो या हर बात के लिए अप्रिशिएट ही करना पड़े, लेकिन जो भी आपको समझ में आए वो आप बताइए, बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होता है इस प्रोसेस में, जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो वो उससे लर्निंग की जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है और आप जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही है कि आप लोग को अप्रेजल के बारे में इस क्लास में बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अप्रेजल?
अप्रेजल क्या होता है? आप लोगों ने सुना है कभी अप्रेजल नाम की कोई चीज? एनीवन? मतलब मूल्यांकन सर होता है। मूल्यांकन होता है, ठीक है। और कोई? सर अप्रेजल मतलब सर जैसे सस्टेनेबल एवेल्युएशन एवेल्युएट करना कि प्रोजेक्ट फिजिबल इवेलुएट, है या किसी नहीं। किसी चीज को इवेलुएट करना, ठीक है, किसी चीज को एसेस करना, ठीक है। और कोई? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अप्रेजल का जो डेफिनेशन है, द एक्ट ऑफ एसेसिंग समवन और समथिंग, ठीक है। द एक्ट ऑफ एसेसिंग किस समवन और समथिंग, इसमें दो चीजें आ गई, एक चीज हो गया समवन और एक चीज हो गया समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से अप्रेजल के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है मैनेजरियल अप्रेजल और दूसरा होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। तो समवन को अगर किसी आदमी के बारे में एसेस करना है आपको, तो वो प्रोसेस होता है मैनेजरियल अप्रेजल, ठीक है। आप लोगों ने एपीआर भरा होगा अपना, एपीआर किसी ने भरा अभी तक पिछले 2-3 सालों में? यस सर बना सर। भरा है। तो एपीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सर ये एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। और कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? सर अप्रेजल रिपोर्ट होगा सर। हाँ बिल्कुल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये क्या होता है, इसमें क्या भरते हैं? आप क्या भरते हैं, आपने पूरे साल में आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसमें आपने क्या क्या किया, क्या क्या रह गई, ठीक है। वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से आपने आपने जो काम किया उसमें कुछ कमी रह गई, कौन कौन से चीजें जो हैं आपने बहुत अच्छी की, आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से किया, ये सारी चीजें होती हैं ना। उसके बेसिस पे जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, वो उसमें हर पॉइंट पे कुछ कुछ मार्क्स देता है आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अप्रेजल। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जो आपका एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भराया जाता है, उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों भराया जाता है? किसी को आइडिया? सर ड्यूरिंग प्रमोशन के टाइम में सर वो एवेल्युएशन किया जाता है कि क्या काम कैसा है। प्रमोशन के टाइम पे भी उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इससे ऊपर होगा तभी प्रमोशन होगा, ठीक है। उससे नीचे होगा तो उसको प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और नेक्स्ट लेवल के लिए आपका परफॉर्मेंस, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, ये उसमें देखा जाता है। और किसके लिए होते हैं? अगर आप डेपुटेशन पे जाते हो, कहीं पे अप्लाई करते हो, तो वो भी पिछले 5 साल का आपका आप रिजल्ट एपीआर मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? चेक चेक द कॉम्पिटिटिव मतलब हाँ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आपकी कंपिटेंसी चेक करने के लिए कि आपने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है, और आपके सुपीरियर्स जो हैं उनका आपके बारे में क्या राय है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक होता है कि पेन पिक्चर ऑफ द ऑफिसर, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, पेन पिक्चर। उसमें 100 वर्ड्स में लिखना होता है जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज, उसकी जो भी क्वालिटीज वगैरह होती हैं वो 100 वर्ड्स में लिखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बेसिकली दिखाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका वर्क के काम के प्रति जिम्मेदारी कैसी, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, इतना करने की जरूरत क्या है? ये है पार्ट ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल, जिसके थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, या फिर जो भी आपका एम्प्लॉय, आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं या फिर हेडक्वार्टर भी आपके नेक्स्ट पोस्टिंग के टाइम पे वो देखता है कि भाई आप किस काम के लिए फिट हो, कौन सा काम, बहुत सारे टाइप के काम होते हैं, तो कौन से काम के लिए कौन सा आदमी फिट होता है, वो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और अगर कहीं आप डेपुटेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा रोल देना है और आपको कहाँ रखना है, तो उस अप्रेजल के बेस पे वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए वो पिछले 5 साल का अप्रेजल माना जाता है, ठीक है। और प्रमोशन के टाइम पे भी पिछले 5 साल का अप्रेजल देखा जाता है, लास्ट 5 ईयर का, कि आपके अप्रेजल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या क्या रिमार्क्स हैं, ठीक है, कोई बैड रिमार्क तो नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती है।
और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट रोल डिसाइड होता है कि जिससे इससे इससे क्या होता है, इसको करने से क्या फायदा होता है। ये करने से जो डिपार्टमेंट को या फिर जहाँ पे आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं उसके रिक्रूटर को, उनको क्या फायदा होगा इससे, इतना स्टडी करके। बोलिए बोलिए। एक एश्योरेंस मिल सकता है कि सर जो आ रहे हैं वो कम्पिटिटिव हैं और हाँ ठीक बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यही होता है कि उनको इस बात का एक लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाता है कि पिछले 5 सालों का हमने एपीआर देख लिया है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है और ही इज कम्पिटेंट टू टू वर्क। तो इसलिए अगर हम इनको अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं या अपने यहाँ इस पोजीशन पे रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये है कि वो काम जो है ये अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस और नो? है सर। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया मैनेजरियल अप्रेजल। इसी तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर पाते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उसका अप्रेजल करते हैं कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है जब हम एक उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सामने ले जाते हैं, वो चीजों को चेक करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये उसको करने का फायदा यही होता है कि ये प्रोजेक्ट बनने से पहले होता है। उस समय क्या होगा कि जब हम अप्रेजल कर रहे होंगे उसी समय हमें पता चल जाएगा उसके उन सारी चीजों से, उन सारे डॉक्यूमेंट से कि ये प्रोजेक्ट जो है बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं करने लायक है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इससे जो इंटेंडेड बेनिफिट है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैनेजरियल अप्रेजल में हम एम्प्लॉयज के बारे में देखते हैं कि अगर हमने इनको रिक्रूट कर लिया तो वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके कितने चांसेस हैं, उसी तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। और ठीक है, ये चेक करने के लिए हम लोग कोई भी कहीं पर भी प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? है सर। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में और कुछ किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? सर ये प्रोजेक्ट अप्रेजल में सिर्फ टेक्निकल ही देखा जाता है या फिर इकोनॉमी भी दिया देखा है सारी CWC? चीजें देखी जाती है, वो आगे आगे अभी बात करेंगे उसके। ओके। अभी तक हमने ये बात किया कि प्रोजेक्ट अप्रेजल में प्रोजेक्ट को बनने से पहले वो सारी चीजें देखी जाती हैं कि जिससे ये पता चल पाए कि प्रोजेक्ट फाइनली जो है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसको बनाने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसमें सारी चीजें देखी जाती है, टेक्निकल, इकोनॉमिक, लीगल, सब सारी चीजें। ठीक है, तो मैनेजरियल मैं ये अप्रेजल कह रहा होता था मैं ये कह हाँ रहा था हाँ टेक्निकलिटी तो देखी जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं, हाँ तो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को सेंटर CWC का अप्रोच करते होंगे ना इसकी हाँ टेक्नोलॉजी चेक करने के लिए। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इंफॉर्मेशन देते होंगे ना स्टेट वाले। हाँ हाँ, अप्रेजल के टाइम पे सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि वो क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, मतलब अभी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि स्पेशली वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, हाईवे प्रोजेक्ट हो सकता है, मेट्रो का प्रोजेक्ट हो सकता है, रेलवे का प्रोजेक्ट हो सकता है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट होता है, केमिकल का प्रोजेक्ट, कोई सा प्रोजेक्ट होता है, सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अप्रेजल सारे अभी स्पेशली वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में हम आएंगे। ठीक है, अभी सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए उसके बारे में। तो मैनेजरियल अप्रेजल जो होता है कि इट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू जज एम्प्लॉय सुटेबिलिटी, वो एम्प्लॉय हमारे लिए सुटेबल है ये जांच करने के लिए सबसे जरूरी होता है मैनेजरियल अप्रेजल। इसी तरह से उसके लिए हम लोग एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट APR भरते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी किसी की APR भरी है? किसी ने?
एमटीएस सर। की, एलडीसी यस सर, की बढ़िया सर। भरी है? यस सर। तो क्या देखा उसमें, क्या भरा है आपने? उसमें सर उसके जैसे जनरल कैरेक्टर्स, नेचर ऑफ ड्यूटीज, कंडक्ट, इंटीग्रिटी, ये सब भरा जाता है। उसके बाद वो क्या क्या ड्यूटीज करते हैं वो तो वैसे सेल्फ वो भरा जाता है कि वो क्या क्या ड्यूटीज किए वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय भरेगा। एंड हाँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर पर्टिकुलर रिमार्क्स दिया जाता है। और उसको जैसे एमटीएस के फरीदाबाद भेजा जाता है तो हम लोग फरीदाबाद भेज देते हैं उसको। अच्छा, एमटीएस का भरा है आपने? यस सर। जैसे आपने उसमें 0 to 10 के बीच में ग्रेड होता है, तो आपने कुछ 8 दिया होगा, कहीं 7 दिया होगा, कहीं 9 दिया हाँ होगा, हाँ हाँ कहीं सर 10 वो दिया होगा, ठीक है? वो किस बेसिस पे दिया था? और जैसे सर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं लाइक। हर पॉइंट के सामने कुछ न कुछ पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, आउट आउट ऑफ ऑफ 10 टेन वो दिया आउट जाता है। ऑफ हर पॉइंट पे देना। तो उसका बेसिस क्या होता है? सर जैसे बेसिस मतलब सर वो जैसे नेचर ऑफ ड्यूटीज हुआ। जैसे आपको बोला कि उनकी जैसे होता है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ऐसे कुछ एक वर्ड आता हाँ है, हाँ ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। यस सर। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कुछ आता है ना? तो उसमें हम्म आपने कुछ दिया होगा, 8 दिया होगा हम्म। आउट ऑफ 10, ठीक है? तो 8 दिया, या किसी ने 9 दिया होगा। अगर आपकी जगह किसी और ने भरा होता तो हो सकता है 9 दिया होता, किसी तीसरे ने भरा होता तो हो हो सकता है सकता है सर, हाँ। 6 ही दिया होता। तो वो ऐसा तो उसमें कोई रैशनल वो है कि भरने का, या आपकी मर्जी? नहीं, मर्जी तो ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग को जैसे कहा गया था कि 6 से नीचे मतलब या कुछ मतलब हम लोग को जस्टिफिकेशन भी देना हो सकता है कि क्यों इतना कम दिए हैं। अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो किसी को नॉर्मली 7 to 9 के बीच में रखना हाँ उचित हाँ, रहता है। एवरेज होगा ना, 7 to 9 के बीच में, 7 to 9 के बीच हाँ, में एवरेज एक्सेप्शनली मार्क्स। हाई भी देंगे तो फिर वो ये भी क्वेश्चन होगा कि आप एक्सेप्ट मतलब उसका लेकिन ये टेन्योर। बिल्कुल, अगर अगर अच्छा काम किया है तो एक्सेप्शनली हाई भी दे सकते हैं, और अगर हाँ। नहीं काम किया है, अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो हम्म, एक्सेप्शनली लो भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन वो रीजन बताना पड़ता है कि आपने इतना खराब क्यों दिया है उन्होंने, अगर नहीं काम, एग्जैक्टली। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है? तो मतलब ये है कि ये आपके ऊपर जजमेंट, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है उसके जजमेंट पे होता है कि वो उसमें क्या दे रहा है, उनका जजमेंट, उनको जो समझ में आया, ठीक है? एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट ने सबको सबका एक रिपोर्टिंग ऑफिसर बना रखा है, उनका एक रिव्यूइंग ऑफिसर बना रखा है। तो ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को पता, को का जजमेंट है कि उन्होंने आपके अंदर क्या देखा और उन्होंने क्या भरा। उसको फिर एक लेवल ऊपर भी जाता है रिव्यूइंग ऑफिसर के पास, कि वो देखते हैं कि हाँ, जो उन्होंने भरा कि ठीक भरा कि नहीं भरा, नहीं तो वो उसमें से थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है? तो 5 साल तक अगर कंटिन्यूअस किसी का खराब आता है, तो इसका मतलब यही है कि वो गड़बड़ है। और 5 साल तक लगा, क्योंकि 5 साल में क्या होता है, ऑन एन एवरेज 1 साल या 2 साल में आपका रिपोर्टिंग रिव्यूइंग में से चेंज हो ही जाता है, ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट में। या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो आपके बॉस का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 1 साल से 1.5 साल ही होता है, एक साल एक आदमी के साथ। एक आदमी शायद ही किसी का कि दो एपीआर से ज्यादा कोई भरता हो, ठीक है? क्योंकि हर 3 साल में, 3 साल 4 साल में ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो आपके बॉस का ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल ने उसको भरा होता है। इसीलिए 5 साल का देखा जाता है कि 5 साल में वो एवरेज आउट हो जाता है कि भाई, कि सच में अच्छा काम करता है, या सच में खराब काम करता है, या फिर ऐसे ही है, ठीक है? इसीलिए पिछले एक एक अगर किसी में कुछ कम भी रह गया हो, तो भी 5 साल में वो एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है? तो कभी इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पीआर में कम नंबर मिल गया या ज्यादा नंबर मिल गया, ठीक है? तो वो हाँ, कहीं भी आप अगर डेप्यूटेशन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो पिछले 5 साल का देखा जाता है। इसलिए कभी टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से काम करना है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में। ये कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है एयरपोर्ट, इसमें इसमें हाईवे का प्रोजेक्ट दिखाया गया है, डैम का प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है? एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट अप्रेजल की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एसेंशियल? कुछ बताएंगे आप? अभी कुछ कुछ हमने भूमिका बनाई थी प्रोजेक्ट अप्रेजल की क्यों जरूरत होती है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे अभिषेक और अमन के अलावा भी बाकी लोग भी हैं, आप भी बात कर सकते हैं।
देखिए इसमें 41 लोग हैं, तो एटलीस्ट सबसे एक बार तो एक आंसर तो चाहिए मुझे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल की आवश्यकता क्यों होती है? कोई आइडिया? नो सर आइडिया? प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए या फिजिकल ठीक होता है, है। तो सबसे पहला होता है क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके बारे में कुछ बात करेंगे आप लोगों में से कोई? हाँ सर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट को बनने में या फाइनलाइजेशन के लिए जितना कॉस्ट लगा और उससे जो आउटपुट आया, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो नॉर्मली ये टेक्निकली मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल है प्रोजेक्ट। हाँ, और मतलब उसको उस जो प्रोजेक्ट बन रहा है उससे बेनिफिट भी आना चाहिए, खाली कॉस्ट ही नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उससे अगर बेनिफिट नहीं आ रहा है जितना हमने सोचा हुआ है उतना, तो फिर उसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी एक प्रोजेक्ट अप्रेजल का पार्ट होता है, ठीक है। और कोई? कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? कौन कौन से कंपोनेंट कॉस्ट में आ जाते हैं? दो कॉस्ट नॉर्मली होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में जो जैसे जो भी मटेरियल्स, लेबर वगैरह वगैरह जो भी खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट वगैरह कॉस्ट में वगैरह में जैसे क्या? हाँ सर, मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए सर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग सप्लाई करेंगे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में लाइक जैसे हम लोग जो सैलरीज देते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, फिर उसका सर वो इनडायरेक्ट थोड़े, तो डायरेक्ट कॉस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो तो। अच्छा वो वो इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है। अच्छा अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेंगे कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट। फिर बिल्कुल आइडिया नहीं है एकदम। सर्वे कॉस्ट भी लगेगा सर इसमें। हाँ बिल्कुल, सर्वे का कॉस्ट लगेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी हाँ, सर हम लोग देते हैं जो फॉरेस्ट सबमर्ज हो डिपार्टमेंट, जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम जो डिफॉरेस्टेशन करेंगे उसके लिए उनको एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा देना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए को, जी सर। ठीक है। और उनका अगर लैंड हमने लिया तो उनकी लैंड का भी पैसा देना पड़ेगा। और और जो सबमर्जेंस में सर फैमिली अफेक्टेड होती है उनको शिफ्ट हाँ, करने के लिए भी उसको क्या बोलते हैं? रहता है। रीसेटलमेंट कॉस्ट। R&R, हाँ, रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, वेरी गुड। एक ये भी कॉस्ट होता है। और कौन सा कॉस्ट हो सकता है? और प्रोजेक्ट का जो एड वर्क है सर उसका कॉस्ट, हाँ, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में जो कैनाल का कॉस्ट लगेगा कॉस्ट। उसका, इक्विपमेंट्स के कॉस्ट, मशीनरी के कॉस्ट, मटेरियल के कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो होते हैं ये सारे कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट में क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन अगर क्रॉप के लिए है सर तो जो अभी अभी चलो, उसमें अभी इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट ले लो, तो चलो रोड का प्रोजेक्ट ले लो, फिर उसमें क्या बेनिफिट होगा? टोल टैक्स है टोल मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। और कनेक्टिविटी ट्रेड बढ़ेगी, ट्रेड इंक्रीज होगा सर। ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, ये सारी चीजें बेनिफिट में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें कुछ कॉस्ट होगी, और उसको उस कॉस्ट को हम खर्चा करने के बाद उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद कुछ बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, ठीक है। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसका कॉस्ट बेनिफिट का जो रेशियो होता है वो हमारा जो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो हमारा जो स्पेसिफाइड है अगर उससे कम है तो हम बोलते हैं ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, उसको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है जो हमारा स्पेसिफाइड है उससे ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो हम उस प्रोजेक्ट को हम कंसीडर करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है चूजिंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रोजेक्ट अप्रेजल के टाइम पे क्या होते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स जो है उसमें से जो बेस्ट सुटेबल प्रपोजल होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रपोजल्स क्या हो गया। चलो, आप लोगों में से इन्वेस्टिगेशन में कोई काम कर रहा है क्या? आप लोगों में से इन्वेस्टिगेशन में कोई काम कर रहा है? नहीं? नहीं। ठीक ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा वैसा ही बन जाए। वो एक ही प्रपोजल बनता है। उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव बहुत सारे प्रपोजल बनते हैं जैसे, ठीक है। और उन प्रपोजल्स में से जो बेस्ट सुटेबल होता है वो बाद में हम सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट बेस्ट सुटेबल है। जैसे हमें मान लीजिए डैम बनाना है, तो डैम का क्या होता है, डैम एक्सेस जो होती है वो दो तीन अल्टरनेटिव साइट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके, वहाँ पे हमारा डैम का हाइट क्या होगा, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो डैम का हाइट कितना होगा, कितना पॉन्डेज होगा, यहाँ पे रॉक अवेलेबल है क्या, सपोर्ट अवेलेबल है क्या, ठीक है, कितना सबमर्जेंस आएगा, कितना कैपेसिटी आएगा, ये सारी चीजें हर दो तीन अल्टरनेटिव निकाल कर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे हम रोड का प्रपोजल बना रहे हैं तो रोड के प्रपोजल में भी दो तीन अल्टरनेटिव बनाते हैं कि रोड हम इधर से ले जाएंगे या फिर हम इधर से ले जाते हैं तो इससे ये फायदा होगा, ये सिटी कनेक्ट हो जाएंगे, या इधर से ले जाते हैं तो, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या फायदा है और इधर से ले जाने में क्या नुकसान है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अप्रेजल के टाइम पे अल्टरनेटिव प्रपोजल्स भी जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेटिव प्रपोजल्स की भी स्टडी करते हैं कि उसमें से कौन सा प्रपोजल जो बेस्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट बनाना है। ठीक है, तो आपने एक साइट सिलेक्ट किया, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया कि चलो पुणे शहर में एक थर्मल पावर प्लांट बना देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्यों नहीं। एक दूसरा प्लांट, दूसरा हो जाता है कि पुणे में बना दिए, दूसरा हो जाता है कि चलो पुणे नहीं सतारा में बना देते हैं, तीसरा होता है सतारा में नहीं, चलो थोड़ा जलगांव में बना देते हैं। ठीक है, तो हर साइट के लिए कुछ सुटेबल पॉइंट्स होंगे, कुछ जो चीजें होंगी अनसुटेबल होंगी। चलो ठीक है, अभी हाइड्रो से हम बाहर निकलते हैं, थर्मल पावर प्लांट पे बात करते हैं। ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट कोल बेस बनाने के लिए आपको क्या क्या देखने की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए। कुछ आइडिया है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बीटेक में, तो सबसे पहले तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कोल। कोल। ठीक है, उसका कोल है तो हम ये देखेंगे कि कोल का माइंस कहाँ पे है और वहां से इसको कोल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इजीली, कितना ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, अगर पुणे में लगाएंगे तो कितना आएगा, सतारा में लगाएंगे तब कितना आएगा, जलगांव में लगाएंगे तब कितना आएगा, कोल माइंस किसके पास है। ठीक है, पहला तो ये हो जाता है। दूसरा क्या जरूरत होता है सबसे ज्यादा? लेबर अवेलेबिलिटी। नहीं, लेबर तो सब जगह मिल जाता है, लेबर में क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी। लेबर तो ट्रेन में भर के आएगा, पुणे में भी आएगा, सतारा में भी आएगा, ऐसा तो नहीं कि पुणे में आएगा सतारा में नहीं आएगा। वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि क्या, थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वाटर अवेलेबल है कि नहीं है वहाँ उसके लिए, जितना पानी उसको चाहिए डेली यूज के लिए, डेली उसका जितना कंजम्पशन है उतना पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, थर्मल पावर प्लांट में पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है वैसे? कूल करने के लिए हाँ, सिस्टम्स। कूलिंग में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, कूलिंग टावर्स में। ठीक है, वेरी गुड, आइडिया है आप लोग को, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही जो भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका अल्टरनेटिव, और फिर हमारा मार्केट किधर है, तीसरा तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि मार्केट किधर है, जहाँ जो हम सप्लाई, जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसका मार्केट किधर है, उसको कैसे सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद फिर बाकी चीजें तो मोर और लेस मैनेजेबल होती हैं। चौथा ये भी होता है, आजकल हो गया है लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, और इन्वायरमेंट इश्यूज कुछ है,
उस एरिया में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हर प्रोजेक्ट के लिए जहां जहां पे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट साइट्स हम लोग डिसाइड करते हैं, इस साइट के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, दूसरी साइड के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, तीसरी साइड के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ये भी प्रोजेक्ट अप्रेजल के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज? जो रिसोर्सेज हम लोग यूज करने वाले हैं वो अवेलेबल है क्या? ठीक है, उसके आसपास है क्या? जहाँ पे एक हमारा, जैसे हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक उसमें CSMRS का एक पार्ट होता है मटेरियल सर्वे। ठीक है, कि जैसे हम लोग डैम बनाने वाले हैं तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, उस मटेरियल की क्वेरी आसपास में है कि वो मटेरियल कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स में हम जो कुछ भी मटेरियल यूज करने वाले हैं वो कहाँ से लाएंगे और उसको लाने का कॉस्ट क्या होगा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हम अप्रेजल के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ अफेक्टेड पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ अफेक्टेड पीपल। ठीक है, अप्रेजल के टाइम पे ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हेलो, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब सेफ्टी एश्योरेंस के बारे में कुछ बात करेंगे, आप लोग कुछ बताएंगे? चलो हाइड्रो प्रोजेक्ट ही ले लो, हाइड्रो प्रोजेक्ट में क्या सेफ्टी एश्योरेंस देखते हैं? सर कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में सपोज कोई डैम हम लोग बना रहे हैं तो हाँ, उसमें सबमर्जेंस होती है, तो उससे बिल्कुल, कितने कितने विलेजेस अफेक्टेड हो रहे हैं इसको ओके, देखना पड़ता है। ओके, एंड ऑल्सो द सेफ्टी दैट किसी सपोज आजकल फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो किसी कारण से वो डैम अपने पर्टिकुलर कैपेसिटी को होल्ड कर सके या इमिडिएटली वाटर रिलीज कर सके विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जितना हमारा फ्लड आ सकता है मैक्सिमम, हमारा स्पिलवे का कैपेसिटी उतना है कि नहीं है ना, यही ना, कि उस फ्लड को पास करने के लिए, ये भी एक सेफ्टी एश्योरेंस का पार्ट हो गया। आजकल एक डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ही बन गया है जो कि डैम की सेफ्टी के बारे में ही बात करता है। ठीक है, तो सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ अफेक्टेड पीपल, जो भी अफेक्टेड पीपल हैं उनकी सेफ्टी के बारे में हम कैसे एश्योर कर सकते हैं, करते हैं, ये भी प्रोजेक्ट अप्रेजल का पार्ट होता है। इवन ये भी होता है कि आप मान लीजिए आपका डैम फेल हो गया है तो उसके डाउन स्ट्रीम में उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, डैम ब्रेक एनालिसिस भी करते हैं कि वो अगर डैम फेल होता है तो नीचे पानी कैसे स्प्रेड होगा और कितने एरिया को वो अफेक्ट करेगा। ये ये चीजें, ये सारी चीजें भी आजकल प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट अप्रेजल में उसका पार्ट होता है। ठीक है, डैम ब्रेक एनालिसिस भी। और जो सबमर्जेंस में आ रहे हैं और जो प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट के पार्ट उसमें आ रहे हैं उनके लिए तो है ही है, उनका तो R&R करेंगे ही, उनका तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर ये भी है कि जो स्ट्रक्चर है आपकी उनकी सेफ्टी, और उसके बाद फिर अगर इन केस अगर वो फेलियर होता है तो डाउन स्ट्रीम में क्या इफेक्ट होता है, उसका डैम ब्रेक एनालिसिस और कितने एरिया में सबमर्जेंस होगा और ये सब सारी चीजों का एनालिसिस जो है वो भी सेफ्टी एश्योरेंस के अंदर आता है और ये भी प्रोजेक्ट अप्रेजल का पार्ट होता है। ठीक है, और कुछ कोई ऐड करना चाहेंगे आप लोगों में से? सर सपोज कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑलरेडी हो गया सर एंड गवर्नमेंट उसको स्टार्ट भी कर दी, हाँ, बट इन द मेन टाइम आजकल जैसे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए प्रोजेक्ट स्टॉप भी हो सकता है सर। हाँ, तो सर मतलब है ना सर इस तब प्रोजेक्ट इश्यूज तो आते अप्रेजल। हैं प्रोजेक्ट्स में, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं प्रीमेच्योर क्लोज करने पड़ते हैं। ओके सर। उसमें कोई वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, जैसे अभी मेरे ही ज्यूरिडिक्शन में 3 प्रोजेक्ट हैं जो जिसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक है नर्मदा में,
वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, और मोरना और कुडाली दो हैं वो यहाँ पे है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उसमें डैम बना हुआ है, और 99 में डैम फिल नहीं हुआ, पूरा बन गया है, खाली गॉर्ज फिल करना है, इतना ही है। लेकिन जो अंदर के जो अफेक्टेड पीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से उसको होल्ड पे रखा हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और ऐसे मोरना और नर्मदे, इनका तो डैम पूरा बन गया है, इनका तो खाली वो कनेक्टिंग लाइन जो है वो लाइन भी बन गई है, बीच में कनेक्शन के लिए थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन वो जो पीएपीज हैं उनके बहुत सारा अपोजिशन चल रहा है, इसकी वजह से रुका हुआ है। तो धीरे धीरे सब चीजें सॉल्व होती हैं, और जब सॉल्व होगी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आजकल क्या हो गया है कि पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रहा है ना, तो उसमें अभी पहले क्या होता था, जब अंग्रेजों के टाइम में प्रोजेक्ट बनते थे या पहले जो भी प्रोजेक्ट बनते थे, तो वो क्या, लैंड एक्विजिशन, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन कर लिया जाता था। ठीक है, अभी क्या है कि कंपलसरी लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, लैंड एक्विजिशन क्या होता है, आपसी सहमति से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे किसी को, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है इरिगेशन के प्रोजेक्ट में कि जहाँ पे पाइपलाइन, महाराष्ट्र में ये उन्होंने बना रखा है कि जहाँ पे पीडीएल है, पाइपलाइन है, वहां पे लैंड एक्विजिशन ही नहीं करना, वहां किसान से बात करके उसका क्रॉप कंपनसेशन देना है, और उसमें एक्सकवेट करना है, पाइप डाल देनी है, ऊपर से अपना खेती वगैरह करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपसी सहमति से ही काम करना पड़ रहा है लोगों को, इसलिए थोड़े से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन नहीं है अभी। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक बहुत एक है इशू, एक बड़ा इशू है सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये लैंड एक्विजिशन की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है सफर करते हैं, लेटर स्टेज में भी सफर करते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता था कि कितना इश्यूज आएंगे लैंड एक्विजिशन को लेके, लोगों की क्या क्या डिमांड आएंगी, कितनी डिमांड आएंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा अपना जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग यूपी में थे, तो एक हमारा बाणसागर प्रोजेक्ट था, बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट था, जो बाणसागर कैनाल, बाणसागर डैम से पानी आता है और यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन करता है। तो उसमें जो कैनाल बना रहे थे, उसमें कुछ पार्ट में कुछ लोगों ने लैंड अपनी दे दी थी, इजीली दे दी थी कि भाई हमारी लैंड ले लो, और पानी की जरूरत है यहाँ पे, तो सबको पानी मिलेगा, अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने नहीं दी। अब क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के हिसाब से सर्किल रेट का 4 टाइम्स मिलता है, और सर्किल रेट हर साल जो है रिवाइज हो जाता है। तो जिसने लैंड दे दी उसको तो कम पैसे मिले, और जिसने नहीं दी, 3-4 साल तक उसने होल्ड किया, बदमाशी करता रहा, नहीं देता रहा, और फिर 4 साल बाद उसका लैंड एक्विजिशन हुआ, तो उसको पैसे भी ज्यादा मिले। ठीक है, और उस समय तक अगर कोई रोड वगैरह आसपास के एरिया में बन जाता है, तो रोड से लगे होने पे खेतों के लोग अगर रोड से लगा है तो उसके अलग रेट हो जाते हैं, ये टाइप की चीजें हो जाती है। तो मतलब इसमें यही फायदा होता है, लोग देखते हैं कि जिसने लैंड दे दिया उसको तो नुकसान हो गया, और जिसने नहीं दिया लास्ट तक वो फंसा के रखा, और लास्ट तक नहीं देता रहा, हमेशा झगड़ा करने के मूड में ही रहा, और कभी, तो उसको अल्टीमेटली फायदा हो जाता है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है मुझे लगता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि अब दो लोगों ने देखा, एक ने देखा कि जब एक आदमी ने, जिसने लैंड इजीली दे दिया, उसको तो पैसे भी कम मिले और जिसने नहीं दिया इजीली उसको पैसे ज्यादा मिले। तो फिर जो देने वाले होते हैं वो भी सोचते हैं यार हम क्यों दें, अब हम भी नहीं देंगे आगे से, ये टाइप की बातें हो जाती हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एनी आइडिया, कुछ बताना चाहेंगे? आप लोग हैं या बंद करके चले गए चाय पीने? नहीं है सर। हैं? सभी लोग हैं ना? है तो जी सर। जी सर। यस सर, यस। है तो बताइए ना, फिर क्या असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या असेस तो कोई करेंगे? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है जो हम हाँ, पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं अभी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लोग ले आते हैं टेक्नोलॉजी की
वो अभी पता ही नहीं टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसको यूज करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब किसी आदमी ने बता दिया कि भैया हमको चांद तक का रोड बनाना है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट बन सकता है क्या? बोलेंगे हम यहाँ से चांद तक का रोड बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट बन सकता है क्या? सब कुछ है हमारे पास, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। करंट कंडीशन में तो नहीं हो सकता सर, वो हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो नहीं अभी डेवलप। टेक्नोलॉजी नहीं है ना, उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग बताते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें का असेसमेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल के टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें और सर कुछ, इक्विपमेंट देखते हैं क्या सर हम लोग, जो टीएनपी रहता है या? हाँ, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। जैसे आपने जैसे मान लीजिए हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें टरबाइन यूज कर रहे हो, तो कौन सी टरबाइन यूज कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, ये जी सारी सर। चीजें जो है, जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट हो गया तो हमने, या जैसे मान लीजिए थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम बॉयलर यूज कर रहे हैं, तो कौन सा बॉयलर यूज कर रहे हैं, कौन क्या उसका क्या मेक होगा, उसकी क्या टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी और कहीं यूज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, जी सर। उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देख लेते हैं। जैसे अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट में, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हैं, एडवांसमेंट हो रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आप केमिकल या पेट्रोकेमिकल में जाएंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। जैसे अपना क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट होता है, जिसमें क्रूड डालते हो, उसमें से पेट्रोल डीजल ये सब निकलता है ना, उस क्रूड, उसके बाद फिर जो डीजल निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर लॉन्गर सीरीज वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की का जो टेक्नोलॉजी होता है, सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी जो होती है, वो जो उसका लाइसेंसर होता है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और जो हमारा वो फिर डॉक्यूमेंट देता है, और वो उसके बाद फिर जो हमारा एलएसटी के कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसके हिसाब से डिजाइन करता है कि हमारा कॉलम कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो सब करते हैं, ठीक है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी, जो हमारा प्रोजेक्ट जो यूज करने वाले हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल है कि नहीं है, ठीक है, जी वो सारी चीजें हम लोग असेसमेंट के टाइम, अप्रेजल के टाइम पे देखते हैं, ठीक है। जी सर। और कोई कुछ इसमें टेक्नोलॉजी में, और किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, बताइए, आपका ही क्लास है, आपका, आप ही के लोगों के लिए है। कुछ डाउट है या फिर कुछ बताना, जरूरी नहीं कि डाउट हो, कुछ बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेसेसिटी टू चेक वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है? हम बोलते हैं ना ये प्रोजेक्ट वायबल है, तो इसको हम, वी विल गो हेड विद द प्रोजेक्ट। अगर वायबल नहीं है, वी विल ड्रॉप द प्रोजेक्ट। वायबिलिटी क्या होती है? एनी आइडिया व्हाट इज वायबिलिटी? अगर फंक्शनेबल मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, तो वो प्रॉपर जो जिस सक्सेस हो सकता वायबिलिटी इज मेजर ऑफ लाइकली सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होगा कि नहीं होगा, उसकी चांसेस कितने हैं, लाइकली सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट का मेजर ऑफ लाइकली सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज वायबिलिटी, ठीक है। ए प्रोजेक्ट हैज टू बी इंश्योर्ड इट इज वायबल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे के पहले ही हम लोग को एक एश्योर करना होता है, ठीक है, इंश्योर करना होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है बनने के बाद वायबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट वायबल है तो हम लोग उसको, उस पर जाते हैं, अगर वायबल नहीं है तो फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या देखते हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है, वेदर द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल। चलो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ये टेक्निकली फिजिबल कब होगा?
क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए? वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में एक ही चीज होता है, पानी होता है, ठीक है। तो टेक्निकली फिजिबल कब होगा ये प्रोजेक्ट? बताइए। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम प्रोजेक्ट को पहले सक्सेस तो कर पाएंगे। सबसे पहली चीज हो गई कि पानी अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। आपने डैम बना दिया, पानी नहीं है, भर ही नहीं रहा, तो फायदा क्या? ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी में सबसे पहला तो ये चीज आ जाता है कि हम जिस लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं वह मटेरियल अवेलेबल है क्या। हमने डैम बना रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी के हिसाब से जिस स्ट्रीम पे डैम बना रहे हैं उसकी ईल्ड क्या है, उस पे पानी है कि नहीं है। पहला तो यही हो गया, हुआ कि नहीं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी है कि नहीं है, तभी तो बनाओगे, नहीं तो फायदा क्या बना के। पहला हो गया टेक्निकल फिजिबिलिटी में, पहला ये आ गया कि उसमें पानी है कि नहीं है, ठीक है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा, बताइए, आप लोग को सब पता है। डिजाइन डिजाइन डैम डिजाइन में क्या कि हम जहां पे डैम बनाने जा रहे हैं, जहां डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ऐसा स्ट्रेटा अवेलेबल है क्या कि डैम को होल्ड कर सके, यही ना। वहां पे उस तरह का स्ट्रेटा होना चाहिए कि जहां पे हम डैम बना सके, ठीक है। ये भी एक फिजिबिलिटी हो गई, भाई वहां पे ऐसा स्ट्रेटा ही नहीं है, एलुवियल सॉइल है, वहां पे आप डैम बनाने जाओगे और नीचे से पानी निकल जाएगा। तो जहां पे आपको डैम बनाना है वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे वो स्ट्रेटा भी होना चाहिए, ठीक है, उस तरह का कि वहां पे आप पानी को होल्ड कर सके और उसको डैम डैम जो है स्टेबल रहे वहां पे। और क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी में और क्या आएगा? लेंथ ऑफ द डैम सर मिनिमम आए हमारा। हाँ ठीक है, वो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, वो थोड़ा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो जाएगा। अगर कम लंबाई का डैम बनाएंगे, टेक्निकल मतलब अगर वो नहीं है तो हो ही नहीं सकता, ऐसी बात हो गई। जैसे पानी नहीं है तो आपका बन ही नहीं सकता प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर अगर वहां पे आपका जहाँ पे आप डैम बनाना चाह रहे हैं वहां पे अगर वो इस तरह का स्ट्रेटा नहीं है कि डैम को होल्ड कर सके, तो फिर बन ही नहीं सकता, ठीक है। इस तरह से और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्कुल। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो फिर तो भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल। सिस्मिक एक्टिविटी के एनालिसिस। सीस्मिक एक्टिविटी एनालिसिस, ठीक है। अगर वो सीस्मिक जोन में आता है और सीस्मिक जोन में आता है और वहां पे अलाउड नहीं है उस जोन में बनाने के लिए, तो भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है, आ जाएगा, जैसे आपने पानी तो इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उसको सप्लाई करने वाले हो इरिगेशन के लिए, और आपको जहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं वहां पे इरिगेशन के लिए लैंड ही नहीं है, तो भी तो कोई फायदा नहीं ना इसको बनाने का, ठीक है। इसको इरिगेशन के लिए कोई यूज ही करने वाला नहीं है। आपने पानी इकट्ठा कर लिया, उस पानी का कोई यूज ही नहीं है अगर, तो भी कोई फायदा नहीं है बनाने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेक्निकल फिजिबिलिटी में आती है, टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू मेक प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी में क्या आ जाता है, आ जाएगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नहीं, इन्वायरमेंट तो अगला पॉइंट है, लीगल लीगल लैंड एक्विजिशन। सर सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट कौन कौन से, जैसे लीगल फिजिबिलिटी में क्या हो, मतलब वो तो है ही है कि आपको हर कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल, जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन आपको अप्रेजल के टाइम में क्या कौन को क्या देखेंगे कि लीगली फिजिबल है कि नहीं है। तो लीगल वर्ड का मतलब क्या है, क्या लीगल क्या होता है और इलीगल क्या होता है, ये बताओ। और जो भी चीजें प्रोजेक्ट्स में लिखी गई हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बाय लॉज जा रहे हैं क्या नहीं। हाँ, जो लॉ ऑफ लैंड है, अगर उसको फॉलो कर रहा है कोई चीज तो लीगल है,
अगर लॉ ऑफ लैंड को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इलीगल है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में क्या कहते हैं, लॉटरी जो है लीगल है, किसी किसी स्टेट में इलीगल है। ठीक है, तो जिस स्टेट में लॉ परमिट करता है उस स्टेट में वो लीगल है, और जिस स्टेट में लॉ परमिट नहीं करता उस स्टेट में वो इलीगल है। तो लीगल का मतलब यही है कि वो जो लॉ है उस लैंड का, जहाँ पे बन रहा है प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनने वाला है, वहां पे उस जो करंट लॉ है, ठीक है, वो उस चीज को परमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर परमिट करते हैं तो वो लीगल है, और नहीं परमिट करते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल रिवर हो गया कोई, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिवर्स के कुछ नॉर्म्स है कि हम इतना पानी इकट्ठा करेंगे, इतना पानी रिलीज करेंगे। अगर उस नॉर्म्स को ये फॉलो करता है तो लीगल है, अगर उस नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता है इलीगल है। ठीक है, तो उसकी लीगल फिजिबिलिटी क्या हो गया कि जो भी लॉ ऑफ लैंड है उसको ये प्रोजेक्ट बनने के टाइम पे वो उनमें से किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ गए? और कुछ कोई ऐड करना चाहेंगे कुछ इसमें? आप लोगों में से कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? लीगल फिजिबिलिटी क्या मतलब हो गया हमें? नहीं क्लियर है? चलो, इसके बाद आता है एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबल। कोई चीज एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबल कैसे होगी बताइए? अरे आप 41 लोग हैं, 41 पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ नहीं बोलना है किसी को, एक दो लोग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब शांति से बैठे हुए हैं। ज्यादा काम हो गया क्या ऑफिस का वहां पे आप लोग को? तो मैं भी स्लाइड पढ़ के खत्म करूं क्या? एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबल में क्या देखेंगे? एनवायरनमेंट को सर डैमेज ज़्यादा ना हो, या प्रोटेक्टेड रहे अपने फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल मतलब सर हम जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को मतलब ज़्यादा हानि ना हो, और वो अपना मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो सर सस्टेन मीन्स रहे वो इन land। फ्यूचर भी वो एनवायरनमेंट का हैबिटेट और नेचुरल जो फ्लोरा फोना है वो लॉस ना हो, जितना हाँ मिनिमम डैमेज हो, और फ्यूचर नीड्स के लिए भी वो बिल्कुल सस्टेनेबल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और कोई? और सोशल सस्टेनेबल क्या हो गया? चलो, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबल हो गया, सोशल सस्टेनेबल क्या हो गया? जैसे पर्टिकुलर कुछ, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, तो वो कुछ ट्राइबल एरियाज में होते हैं, तो उनकी हम्म अपने कल्चर होती है। तो हम्म सपोज बनाए तो उस विलेज को हो सकता है हमें शिफ्ट करना पड़े, तो कम्प्लीटली उनके कल्चर्स डैमेज ना हो, उनके लाइफस्टाइल डैमेज ना हो, इससे हम लोग को इसको थिंक करना चाहिए, और पर्टिकुलर सुटेबल वेज से उनको मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए अप्रोच करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट बना दिया, और हमने खेतों खेतों तक पानी पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कोई यूज नहीं कर रहा उसको, ठीक है, कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो ये सोशल सस्टेनेबल होगा कि क्या? सोशली सस्टेनेबल होगा प्रोजेक्ट? मतलब सोसाइटी उसको यूज ही नहीं कर रहा आपके प्रोजेक्ट को, तो भी तो सोशल सस्टेनेबल नहीं रहा ना। आपने एक मेट्रो प्रोजेक्ट बना दिया और कोई उसमें बैठ ही नहीं रहा, कोई जा ही नहीं, उसको यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है,
तो भी सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो भी आपने बनाया वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए और सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोगों को उसको यूज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिकली फीजिबल। इसमें तो आपको पता होगा इकोनॉमिकली फीजिबल में क्या होगा। वही सर, कॉस्ट ये प्रोजेक्ट मिनिमम में रहे सर बेनिफिट हमारा। हमें। कोई चीज इकोनॉमिकली फीजिबल कब होती है? जब कॉस्ट उससे में जब बेनिफिट वो आए सर। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सर मैक्सिमम आए हमारा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक प्रोजेक्ट है उसमें कॉस्ट बेनिफिट, चलो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1.5 है, दूसरे में 2 है, तो दोनों करेंगे या एक को ही करेंगे? तो जिसमें ज़्यादा है वो करेंगे। ज्यादा मैक्सिमम वाले। दोनों की जरूरत है तो दोनों कर सकते हैं क्या? डिपेंड करेगा फंडिंग कितना है। हाँ डिपेंड करेगा फंडिंग कितना आपके पास। तो इकोनॉमिकली फिजिबल में ये डिपेंड करता है कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट में आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। इकोनॉमिकली फिजिबल आपने बहुत सारा प्रोजेक्ट को ऐसे फैला दिया, हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे, फिर उसके लिए पैसा है कि नहीं आपके पास, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। तो जितना जो जो भी प्रोजेक्ट है वो करने के लिए सफिशियंट फंड्स का प्रोविजन है कि नहीं है। अगर सफिशियंट फंड्स का प्रोविजन है तो दैट मीन्स दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, आपके पास उतना पैसा है, आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो इसका मतलब इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। समझे? अगर आपके पास जी उतना पैसा नहीं है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्यों जरूरत होती है। प्रोजेक्ट अप्रेजल में जरूरत होती है क्योंकि हम लोग इट फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। चूजिंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, देख अल्टरनेटिव प्रपोजल्स में से बेस्ट प्रपोजल सेलेक्ट करते हैं। ये चेक करते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज है कि नहीं है। उसके बाद सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ अफेक्टेड पीपल और असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और वायबिलिटी क्या होती है? हम लोग ये देखते हैं कि वेदर प्रोजेक्ट है टेक्निकली फिजिबल, लीगली फिजिबल, एनवायरमेंटल सोशल सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। जस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में क्या अप्रेजल की क्या जरूरत होती है। ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगता है? मान लीजिए चलो ठीक है, एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है मान लीजिए। ठीक है। तो उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा? आपको क्या लगता है? 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़? 1000 करोड़। मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ठीक है। जैसे भी एक पुलावरम का प्रोजेक्ट चल रहा है वो 70-80 थाउजेंड करोड़ में चल रहा है। ठीक है। तो कोई भी वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो होता है वो कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा होता है कि नहीं? तो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट जो होते हैं वेरी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा यूज होता है। इसीलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनका अप्रेजल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और बिना अप्रेजल के अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिना ये देखे कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो चांसेस है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार भी जा सकता है। इसीलिए वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट की प्रियर अप्रेजल जरूरी है। दूसरा क्या है? वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट जो होते हैं मोस्टली इंटर स्टेट रिवर्स में बने होते हैं। ठीक है। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो इंटर स्टेट रिवर्स पे बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये चेक करना जरूरी होता है कि वो इंटर स्टेट रिवर है तो इसमें एक स्टेट का दूसरे स्टेट, एक स्टेट का शेयर दूसरा स्टेट तो नहीं यूज कर रहा क्योंकि उस पर डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर इंटर स्टेट रिवर पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसके लिए भी उसके प्रॉपर अप्रेजल की जरूरत होती है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि वो जो है स्टेट जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो स्टेट का अपना शेयर है, वो अपने शेयर में से
पानी यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ऐसी की कोई रिवर आप लोग को पता है जो इंटर स्टेट रिवर ना हो? कोई रिवर, आप लोग रिवर पे ही काम कर रहे हैं मोस्टली, तो कोई रिवर बताएंगे जो इंटर स्टेट रिवर ना हो या इंटर स्टेट रिवर सिस्टम का पार्ट ना हो? अगर आप किसी इंटर स्टेट रिवर सिस्टम के पार्ट है तो भी आपका जो माही रिवर सर। जो माही जी सर। कहाँ ओरिजिनेट होती है? गुजरात, अच्छा राजस्थान से शायद वो निकलती, गुजरात होके फिर जाती है आगे। राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और गुजरात हो तब तो इंटर स्टेट हो गई ना। जी सर, जी सर। तो फिर तो इंटर स्टेट हो मोस्टली गई। गुजरात में ही है वो वैसे तो। नहीं, वैसे तो नहीं है। अगर एक स्टेट में ओरिजिनेट होती है और दूसरे स्टेट में जाती है तो फिर इंटर स्टेट हो गई ना, दो स्टेट टच कर रही है। सर नर्मदा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मोस्टली एमपी में ही हो जाता था। हाँ ठीक है, लेकिन नर्मदा तो इंटर स्टेट है ना, वो नर्मदा का पार्ट है ना। नहीं, शायद छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट उन ट्रिब्यूटरीज पे भी बनी हुई है। बिल्कुल बने होंगे, बिल्कुल बने होंगे, लेकिन वो उनके लिए भी उनका अप्रेजल करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो नर्मदा के पार्ट है, नर्मदा के पार्ट का एलोकेशन पहले से ही है कि कौन कितना कितना पानी को किसको मिलना है, उसका एलोकेशन पहले से ही कर रखा है। ठीक है। तो अगर जैसे एमपी में है तो एमपी अपने शेयर का ही यूज कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन बट उनका अगर इंटर स्टेट रिवर सिस्टम पे कोई काम हो रहा है तो उसके लिए अप्रेजल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एक लूनी रिवर है वो राजस्थान में स्टार्ट होकर राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा जितने भी आप रिवर से देखेंगे, उसके उसके अलावा जितने भी आप रिवर देखेंगे, जितने भी रिवर है या वो किसी ना किसी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल रिवर सिस्टम के पार्ट हैं। और इसलिए अगर उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उस पर डेफिनेटली जो है वो लीगल इंटर स्टेट मैटर से उसको क्लियरेंस चाहिए होता है। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसमें बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। ठीक है। इसके लिए भी इसके अप्रेजल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के अप्रेजल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दे आर कैपिटल एक्सटेंसिव, दे आर कैपिटल इंटेंसिव, और दूसरा दे आर लोकेटेड ऑन इंटर स्टेट रिवर्स, और दे आर हैविंग लॉट ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन, दैट्स व्हाई अप्रेजल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अप्रेजल के टाइम पे सीडब्ल्यूसी में क्या देखा जाता है? ठीक है। अप्रेजल जो होता है इसका टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल करते हैं सीडब्ल्यूसी में। तो अप्रेजल में क्या देखते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज एट ऑप्टिमल कॉस्ट। ऑप्टिमल क्यों यूज किया है? कोई बता सकता है? तो ऑप्टिमम मतलब जैसे बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन होता है, वरना कम ना ज़्यादा, जितना लगेगा उतना ही लगभग यूज़ किया जाए। और कोई? सर ऑप्टिमल जैसे मतलब संतुलित रूप में एक ऐसा ऐसे होता है कि मतलब प्रक्रिया अच्छी हो, काम काम सर की कम खर्च हो, कम समय लगे, या ज्यादा ज्यादा लाभ देता हो। ऑप्टिमल का टर्म हो गया, मतलब उस प्रोजेक्ट सर से वाटर हमको। इज अ स्कार्स मतलब रिसोर्स है, काफ़ी कमी है उसकी, अवेलेबल वाटर है, उसका ऑप्टिमल यूज़ करना ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं सुन वेस्ट नहीं नहीं कर पाया सकते आपका। हैं। विजय जी फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर कि जो वाटर है ना वो काफ़ी मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, हाँ। तो उसका ऑप्टिमल यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छा है, उसको वेस्ट नहीं बिल्कुल। कर सकते। तो क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है, उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो एक हो सकता है एक स्टेक होल्डर को देने से मैक्सिमम प्रॉफिट होता हो, किसी एक को देने पे वो ज्यादा पैसा देता हो, उसको ज्यादा दोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री को आपने का एलोकेशन ज्यादा रखा है, इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन हमारा ये पर्पज नहीं होता, हमारा पर्पज ये होता है कि सभी को, जिसको जिसको जरूरत है, उसको उसको पानी मिले। ठीक है। तो इसके लिए
हमारा जो अप्रोच होता है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, किसी एक को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देना है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना है। ठीक है, कि जिसको जितनी जरूरत है उतना पानी मिले, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो पानी का, और ऑप्टिमल कॉस्ट पे, ये सीडब्ल्यूसी का अप्रोच होता है अप्रेजल में। ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज एट ऑप्टिमल कॉस्ट। दूसरा हमारा सीडब्ल्यूसी का आउटलुक होता है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे देखते हैं? सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स कहां से देखेंगे, कैसे चेक करेंगे? थ्रू टेक्निकल अप्रेजल। हाँ, थ्रू डिजाइन। ठीक है, डिजाइन के थ्रू हम लोग उसका सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैक्सिमम प्रॉबेबल फ्लड जो है वो जितना है, अगर स्पिलवे कैपेसिटी उससे कम है तो क्या होगा? ओवरटॉपिंग हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, तो स्पिलवे की कैपेसिटी है कि नहीं है, जिस स्ट्रेटा पे डैम बना रहा है वो स्ट्रेटा है कि नहीं उसको होल्ड करने लायक। ठीक है, उसमें उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है चेक करके ये एश्योर करने की कोशिश की जाती है कि जो स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं वो दे विल बी सेफ आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए ना। सर ड्यूरिंग जैसे डैम जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय तो रिवर का जो फ्लो चैनल है वो नॉर्मल रेजिम में रहता है, तो उसमें हम लोग हाँ सेडिमेंट एनालिसिस तो नहीं कर पाते हैं, बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन तो उसमें सर धीरे धीरे जैसे सेडिमेंट जमा होते रहेगा एंड धीरे धीरे वो द वाटर लेवल वो धीरे धीरे राइज कर सकता है अगर प्रॉपर मतलब डिसिल्टेशन नहीं किया गया। जी जी, तो सर इस टाइप के केसेस को किस तरीके से सर इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ रहेगा? ये डिजाइन में देखते हैं ना, ये सारी चीजें ना, डिजाइन हमारा डीएनआर विंग है ना, वो लोग ये सारी चीजों इस इन सारी चीजों की स्टडी वो लोग करते हैं। ओके उनके हिसाब से उनके पास बहुत सारे डाटा होते हैं पिछले कई सारे प्रोजेक्ट्स के, तो उसके बेस पे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि कितना सिल्टेशन हो जाए इस रीजन में जो प्रोजेक्ट बने हैं उसमें कितना ओवर द टाइम कितना सिल्टेशन होता है, उसके क्या क्या रिपरकशन होते हैं, वो सारी चीजें वो लोग, उनके पास डाटाबेस है काफी बड़ा, तो उसके बेस पे वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। ये डिजाइन विंग का आउटलुक है। वहाँ सीडब्ल्यूसी में हम लोग ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल इंटरस्टेट एग्रीमेंट्स जो है या ट्राइब्यूनल अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल रिवर्स पे, उनको जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं इसके ना, उनको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग अप्रेजल के टाइम पे, टेक्नोइकोनॉमिक अप्रेजल के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, और किसी किसी स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि उनके पास इन हाउस डिजाइन का टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है डिजाइन के लिए। ठीक है, वो लोग किसी कंसल्टेंट को हायर किया और वहां से उनसे डीपीआर बनवा लिया। ठीक है, तो जिनके यहाँ इन हाउस डिजाइन कैपेसिटी नहीं है जिन स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए या जो भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनके पास अपना सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनके जो टेक्निकल उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसमें भी सीडब्ल्यूसी जो होता है उसमें हैंड होल्डिंग करता है। ठीक है, उनके डीपीआर बनाने में, उस डीपीआर के उस पार्ट को एनालिसिस, उसका डिजाइन वाला पार्ट को एनालिसिस करने में या उसको बनाने में। ठीक है, जैसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनके पास अपना सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूपी हो गया या महाराष्ट्र हो गया, इनका सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो इनके पास कैपेसिटी है कि वो नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास सीडीओ नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो नए प्रोजेक्ट बना पाए, तो उनकी हैंड होल्डिंग भी सीडब्ल्यूसी करता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो सीडब्ल्यूसी में सबमिट होते हैं अप्रेजल के लिए, कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर अप्रेजल। ठीक है, इसमें होता है मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, कोई आइडिया है आपको?
जिसमें 10,000 से डेवलप का यूज करना है। हाँ जिसमें बिल्कुल। generate अब मीडियम कौन से होते हैं? सर कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर से 2,000 से 10,000 10,000। हाँ वेरी गुड। अभी आगे आगे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? मल्टीपर्पज मतलब एक से ज्यादा पर्पज यूज हो रहा है, जिसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो रहा है इरिगेशन के साथ साथ, तो मल्टीपर्पज हो गया ना। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट जो है ये मेजर है और मीडियम है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनका अप्रेजल सीडब्ल्यूसी में होता है, करना पड़ता है। ठीक है। फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स है, इनका अप्रेजल भी सीडब्ल्यूसी में करते हैं। सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनका भी सीडब्ल्यूसी में अप्रेजल करते हैं। ठीक है। जैसे कोई जैसे हमारा फरक्का बैराज है, तो हाँ वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइवर्शन वर्क्स के लिए भी यूज हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज हुआ, हाँ, तो तो मल्टीपर्पज हो गया ना। ये भी मल्टीपर्पज हो गया। ये भी मल्टीपर्पज, एक से ज्यादा पर्पज, मल्टीपर्पज है ना, एक से ज्यादा पर्पज के लिए ओके। यूज हो रहा है, तो मल्टीपर्पज हो गया। ठीक है। स्कीम्स ऑफ रिपेयर इनोवेशन रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये पीएमकेएसवाई के अंदर में एचकेकेपी के का पार्ट है। ट्रिपल आर स्कीम। पीएमकेएसवाई आप लोगों को पता है क्या किसी को? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और एचकेकेपी क्या है? हर खेत को हर पानी। खेत को हर पानी। खेत को पानी। तो पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे एआईडीपी है, केडब्ल्यूएम है, एचकेकेपी है। तो ठीक है, तो ये भी एसकेकेपी के अंदर आता है, रिपेयर रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और उसका अप्रेजल जो है सीडब्ल्यूसी में किया जाता है। ठीक है। अगला है एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इरिगेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है। ईआरएम प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं। जो कोई प्रोजेक्ट बन जाता है, पुराना हो जाता है, तो उनका मॉडर्नाइजेशन करते हैं, एक्सटेंशन रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन को बोलते हैं ईआरएम। सर एक ही मैं पूछना चाहता था एमएंड में। हाँ सर जैसे हम मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं स्टेट में, कोई प्रोजेक्ट सपोज करिए चल रहा डैम या बैराज कोई हाँ बना रहा है, हाँ तो मॉनिटरिंग के लिए आप लोग जैसे मॉनिटरिंग वाले जाते रहते हैं समय समय पे हाँ देखने। बिल्कुल। अब वहाँ उनको एज पर मुताबिक काम नहीं मिल रहा, काम में खराबी मिल रही, स्टेट वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, उस पे आप क्या कर सकते हैं तब सर? उस पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला हम तो मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये एज पर गाइडलाइंस नहीं हो रहा है, एज पर आईएस कोड नहीं हो रहा है। ठीक है। हम जी। उनको बोलते हैं, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग होती है उनके एसई चीफ से, उनको भी बताते हैं। हमारे जो मीटिंग्स होती हैं, हमारे जो जैसे हमारे हेडक्वार्टर, कभी कभी मेंबर साहब मीटिंग लेते हैं, मेंबर डब्ल्यूपीएनपी या फिर चेयरमैन लेते हैं, तो उस मीटिंग में भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख सकते हैं, या उनके हमारी कभी सेक्रेटरी वगैरह की मीटिंग होती है, उसमें हम लोग पार्ट होते हैं, तो उसमें भी हम बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें इस प्रोजेक्ट में ये इश्यूज हैं, जिनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो हो जाता है, ऐसा कोई इशू अभी तक तो हमें आया नहीं कि जो हमने पॉइंट आउट किया और उसको उन्होंने ठीक ना किया हो। ओके सर। वो सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि सबका पर्पज क्या है ना, जो भी काम कर रहा है सबका पर्पज है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो, और वो जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे, वो डैमेज ना हो। ठीक है। तो सब मिलके काम करते हैं कि कहीं अगर कहीं किसी से ओवरलुक हो गया है, तो फिर वो सब मिलके काम करते हैं उसमें, और सब जो है वो आगे आगे जाके फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिसने बनाया है उसी के सिर पे आएगा ना। तो अगर उसको पॉइंट आउट करते हैं तो उसको तुरंत ठीक करते हैं, ऐसा कोई उसमें हमने तो आज तक नहीं देखा कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट आउट नहीं किया हो, पॉइंट आउट किया हो और बाद में उसको ठीक ना किया हो उन्होंने। कल मॉनिटरिंग वाला जब सेशन होगा ना, तो उसमें मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा आपको, कि जो हमने पॉइंट आउट किए थे जो प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर उसको कैसे उन्होंने रेक्टिफाई किया स्टेट गवर्नमेंट ने, वो मैं दिखाऊंगा कल। ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट की बाद में अगर डिले होता है या किसी भी रीजन से कॉस्ट रिवाइज हो जाती है, तो रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट भी सीडब्ल्यूसी में आता है अप्रेजल के लिए। तो अभी हमारे सीडब्ल्यूसी में कौन कौन से किस किस टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं? मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है। फ्लड मैनेजमेंट वर्क के प्रोजेक्ट आते हैं। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था इसी में। हाँ
सर मॉनिटरिंग में जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, हाँ जैसे सर अभी हर घर जन नल नल वाला पीएम प्रधानमंत्री जी का जी योजना हर स्टेट में चल रहा है, जी। तो क्या सर उसमें भी मॉनिटरिंग वाले जाते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते नहीं, हैं वो इसमें? क्या होता है कि डैम्स में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ पानी एलोकेट करके रखा होता है डैम अथॉरिटी ने, ठीक है। तो वो लोग जी। जो है ड्रिंकिंग वाटर वाले, वो जल जीवन मिशन, वो जिला परिषद कर रहा है वो काम। हाँ, ज्यादातर स्टेट्स में जिला परिषद, जेडपी जो है जिला परिषद को काम दे रखा है वो करने के लिए, तो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सीडब्ल्यूसी की मॉनिटरिंग नहीं है, ओके सर। ठीक है। रीजन जो भी हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारी जगहों पे आया हुआ है, बहुत सारे शिकायतें विकायतें भी चल रही हैं कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है। बट सीडब्ल्यूसी का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। कभी कोई सेंट्रल टीम बन गई जिसमें किसी हम लोग को उसमें पार्ट है, तो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बताया जाता है वो प्रोजेक्ट देख के आ जाते हैं, इतना ही है, ठीक है। ओवरऑल मॉनिटरिंग सीडब्ल्यूसी की इसमें नहीं है, ठीक है। अगला आता है एक ईआरएम। तो हमने मेजर मीडियम प्रोजेक्ट हो गया, मल्टीपर्पज हो गया, एफएमपी के प्रोजेक्ट हो गए, सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, ट्रिपल आर के, ईआरएम के प्रोजेक्ट, और आरसीई रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट, ये सब सीडब्ल्यूसी में आते हैं अप्रेजल के लिए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो अभी बात कर रहे थे, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनका सीसीए जो होता है 2000 हेक्टेयर से कम होता है। सीसीए क्या होता है? व्हाट इज सीसीए? कल्चरेबल कमांडेड एरियाज। वेरी गुड। और जीसीए से कैसे डिफरेंस होता है ये? तो जीसीए ग्रॉस कमांडेड एरिया है सर, मतलब जीसीए है ग्रॉस कमांड एरिया और सीसीए है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ग्रॉस कमांडेड में पूरा आ जाएगा, कल्चर कमांडेड में जिसमें हम इरिगेशन कर रहे हैं उसी पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे। जिससे में इरिगेशन कर रहे हैं या जिसमें खेती कर रहे हैं? खेती कल्चरेबल कर रहे हैं। जिसमें खेती कर रहे हैं वो पार्ट आया था ना, जिसने एरिया में हम लोग खेती कर सकते हैं वो हो गया कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। जितने एरिया में हम लोग, और पूरा एरिया जिसके अंदर वो घर भी होगा, वो रोड भी होगा और बाकी चीजें भी होगी, उस पूरे उसके अंदर कैच उसमें, तो वो ग्रास कमांड एरिया आता है, ठीक है। और जिस ओनली दैट पार्ट जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं वो हो जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। तो ये 2000 हेक्टेयर से कम है तो माइनर होता है, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक हो गया तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग को ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, बाद में भी आपको जरूरत होती है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कहीं भी ये टर्म यूज होते हुए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सीडब्ल्यूसी में कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 2000 से 10,000 के बीच में है इसलिए मीडियम है, इसका सीसीए, जीसीए नहीं, सीसीए, ठीक है। अच्छा, हेक्टेयर और एकड़ में क्या रिलेशन होता है, आपको आइडिया है क्या? एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? किसी को कोई आइडिया? गोविंद कुमार जी ने दिया 2.54, तो बता भी सकते यार, सब सुन लेते। एक एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होता है? एक एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 4046 स्क्वायर मीटर। और एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होता है? 10,000। 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, वेरी गुड। तो ठीक है, तो 2.54 ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है। एक हेक्टेयर में एकड़, 2.54 एकड़ के आसपास, ठीक है। ये टर्म्स बहुत यूज होते हैं, एकर्स, हेक्टेयर्स, ये सब आप कभी जाएंगे लैंड एक्विजिशन वगैरह में किसी भी उसमें, तो एकर्स में यूज होता है, एकर्स में, हेक्टेयर्स में, दोनों टर्म यूज होते हैं, और इसका रिलेशन थोड़ा आइडिया रहने से अच्छा होता है। वो होता है 4046 स्क्वायर मीटर और ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अच्छा, फ्लड कंट्रोल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हेक्टेयर से नहीं होता, उसमें कॉस्ट से होता है, ठीक है। अगर मेजर प्रोजेक्ट है तो उसका कॉस्ट 25 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसको मेजर प्रोजेक्ट बोलेंगे।
12.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में कॉस्ट होगा तो मीडियम प्रोजेक्ट बोलेंगे, और अगर 12.5 करोड़ से कम कॉस्ट हुआ तो उसको बोलेंगे माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, एफएमपी के प्रोजेक्ट जो है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट जो है, उनका ये है मेजर, मीडियम और माइनर का डेफिनेशन। ठीक है, तो सीडब्ल्यूसी में कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट होती हैं? सबसे पहली रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो होती है PFR, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद बनती है हमारी DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और अगर प्रोजेक्ट के बनने के टाइम उसका कॉस्ट बढ़ जाता है तो आती है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, RCE। ठीक है, ये तीन स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट में अप्रेजल में रिपोर्ट सबमिट होती है अप्रेजल के लिए। ठीक है, एक PFR का अप्रेजल होता है, एक DPR का अप्रेजल होता है, एक RCE रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट का अप्रेजल होता है सीडब्ल्यूसी में। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक हो? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? PFR क्या होता है तो बताएगा? PFR क्या होता है, कब बनता है? आप लोगों ने किसी ने बनाया है PFR? सीडब्ल्यूसी में बहुत सारी जगहों पे बना रहे हैं PFR, DPR, ये सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन डिविजन है। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है। ठीक है, जिसमें कि ये डिसाइड होता है कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, और क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। ये PFR में डिसाइड होता है। ठीक सर है, ये रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन विंग बनाती है क्या सीडब्ल्यूसी की? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए PFR जो है वो सीडब्ल्यूसी के इन्वेस्टिगेशन डिविजन्स को दिए हुए हैं, वो बना रहे हैं। पहले PFR बनता है, PFR डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट स्टेट से नहीं आती है क्या सर ये फिजिबिलिटी, प्री फिजिबिलिटी एंड डिटेल? नहीं, कुछ स्टेट से बना रहे हैं, कुछ स्टेट ने सीडब्ल्यूसी को दे रखा है क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर जो भी रीजन हो कि सीडब्ल्यूसी ही बना दे, क्योंकि अप्रेजल के टाइम पे सीडब्ल्यूसी में ही जाता है। तो PFR अगर सीडब्ल्यूसी बनाएगा तो अप्रेजल में थोड़ा सा उनको इजी हो जाएगा। ठीक है, और सीडब्ल्यूसी के भी डिविजन्स इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि क्या है, हमारी कॉम्पिटेंसी तभी बनी रहेगी जब हम काम करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम PFR DPR ये सब बनाते रहेंगे तो हमारी कॉम्पिटेंसी भी बनी रहेगी सब्जेक्ट मैटर में। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाली बैठ के अप्रेजल करेंगे तो फिर हमारी कॉम्पिटेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो फील्ड पे काम करने से ही चीजें आती हैं। जब तक फील्ड पे आपने काम नहीं किया हुआ है तो आप ऑफिस में बैठ के कितना भी काम कर ले वो फील नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए सीडब्ल्यूसी ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि PFR और DPR ये सब चीजें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वो खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट के, क्या क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें उसमें हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और DPR क्या होता है? तो DPR के टाइम पे बहुत सारी चीजें फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, DPR के टाइम में जैसे आपने PFR में 3 लोकेशन दे दिए, डैम यहाँ भी बना सकते हैं, डैम यहाँ भी बना सकते हैं, डैम यहाँ भी बना सकते हैं, 3 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, हमारा पावर हाउस यहाँ भी हो सकता है, इस वाले में यहाँ भी हो सकता है, 2-3 बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं PFR के टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और DPR में जो फर्म कर देते हैं उनको कि भाई DPR वाले स्टेज में कि ये वाला प्रोजेक्ट ठीक है, यहाँ पे डैम बनेगा, यहाँ पे पावर हाउस बनेगा, यहाँ पे पावर टनल बनेगा, यहाँ से टेल रेस्ट आएगा। ये सारी चीजें जो है DPR के स्टेज में सब फर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी की डिसीजंस होते हैं वो DPR स्टेज पे ले लिए जाते हैं। ठीक, DPR में फाइनलाइज हो जाते हैं। ठीक है, DPR जो होता है वो बैंकेबल होता है। ठीक है, DPR जो होता है बैंकेबल होता है, उसके बेस पे जो होता है बैंक लोन भी देता है प्रोजेक्ट को। ठीक है, जैसे किसी को एशियन डेवलपमेंट से लोन चाहिए या किसी को नाबार्ड से लोन चाहिए, किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए,
तो वो क्या करते हैं, वो डीपीआर लेके जाते हैं कि डीपीआर का हमारा अप्रेजल हो चुका है, ये डीपीआर के बेसिस पे हमारा इतना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उनको बैंक उसके बेसिस पे लोन भी देते हैं। ठीक है, तो डीपीआर के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जितने हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो डीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी प्रोजेक्ट का। तो इसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस यूज होती हैं बनाने के लिए, ये सब सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइंस होती हैं। इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए एक 2010 की गाइडलाइंस है, ये सब हमारे सीडब्ल्यूसी की साइट पे आपको मिल जाएंगी, रेडली अवेलेबल है। गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इरिगेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2010 की है, एक 2017 की गाइडलाइंस है। एक गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर फॉर फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स 2018 की है। एक कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम की 2017 की गाइडलाइन है। एक सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम की गाइडलाइन है 2022 की। ईआरएम की गाइडलाइन है, HKKP ट्रिपल आर की गाइडलाइंस है, और बहुत सारी गाइडलाइंस और कोर्स जो भी है वो हमारे सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट्स पे हैं, उनको यूज करते हैं, और BIS कोड्स को, रिलेवेंट BIS कोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स डीपीआर का बनाने के लिए। अच्छा, सीडब्ल्यूसी में अप्रेजल कहाँ पे होता है, मेजर और मल्टी। अभी हमने तीन चीज अभी हमने देखा, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तीन चीजें देखा ना। तो उसमें से जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है उनका अप्रेजल कहाँ पे होता है, सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में। सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में कहाँ पे होता है, कौन सी विंग में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, WPNP PAO में सर, WPNP के अंदर PAO में होता है। ठीक है, PAO ठीक है। अभी कौन है चीफ इंजीनियर PAO, कोई आइडिया है किसी को? चीफ श्री इंजीनियर, राकेश कुमार है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, वेरी गुड अक्षय। तो राकेश कुमार जी हैं अभी चीफ इंजीनियर PAO। ठीक है, तो इनका जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है विद पावर कंपोनेंट, इनका अप्रेजल सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है, PAO में। ठीक है, और जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, जिनका मीडियम कौन से हो गए, जिनका 2000 से कम है या 2000 से 10,000 वाले, 2000 से 10,000। 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाले जो मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका अप्रेजल जो होता है कहाँ पे होता है, रीजनल ऑफिस में, सीडब्ल्यूसी के रीजनल ऑफिस में, जो M&A डायरेक्टरेट है या फिर अप्रेजल डायरेक्टरेट है। जैसे हम लोग का डायरेक्टरेट है M&A, मॉनिटरिंग एंड अप्रेजल डायरेक्टरेट, यहाँ पे होगा, या फिर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में खाली अप्रेजल डायरेक्टरेट, मॉनिटरिंग अलग है, अप्रेजल अलग है। तो अप्रेजल डायरेक्टरेट्स, वहाँ पे जो भी अप्रेजल डायरेक्टरेट्स है उनके अंदर इसका अप्रेजल होता है। ठीक है, 10,000 से ऊपर है तो सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर जाता है, 2,000 से 10,000 के बीच में है तो फील्ड ऑफिस के मॉनिटरिंग एंड अप्रेजल डायरेक्टरेट में आता है। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है उसके अप्रेजल की जरूरत नहीं है, सीडब्ल्यूसी उनका अप्रेजल नहीं करता है इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट का, और उनको स्टेट गवर्नमेंट से बोलता है भाई आप खुद अप्रेजल कर दो, एक सर्टिफिकेट दे दो कि हमने अप्रेजल कर लिया। ठीक है, उसके अप्रेजल की हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसका CCF 10,000 से कम है और पावर कंपोनेंट 25 मेगावाट से कम है, तो उसको मीडियम प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसका अप्रेजल सीडब्ल्यूसी का रीजनल ऑफिस करता है। ठीक है, आइदर ऑफ टू, अगर ग्रेटर देन 10,000 हो गया या फिर 25 मेगावाट से ज्यादा हो गया तो वो मेजर हो जाएगा। अगर 25 मेगावाट से कम है पावर कंपोनेंट और CCF 10,000 हेक्टेयर से कम है तो उसको तो उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट ट्रीट किया जाता है, और उसका अप्रेजल जो होता है सीडब्ल्यूसी का रीजनल ऑफिस करता है। ठीक है, किसी को डाउट, कुछ पूछना है? नहीं, अप्रेजल प्रोसेस कैसे होता है, स्टेज 1 में होता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होता है प्रोजेक्ट अथॉरिटी सबमिट करती है सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में। डीपीआर जो है, डीपीआर के दो जगह सबमिट करने के हैं। डीपीआर सबमिट कहाँ कहाँ पे होता है, अगर मेजर है तो सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में, और मीडियम है तो फील्ड ऑफिस में। लेकिन पीएफआर जो है, पीएफआर केवल और केवल सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में आता है, पीएफआर जो है फील्ड ऑफिस में नहीं आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है।
डीपीआर का अप्रेजल कहाँ पे होता है? डीपीआर का अप्रेजल जो है 2 जगह पे होता है, फील्ड ऑफिसेज में और सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में। सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में पीईओ में और फील्ड ऑफिसेज में मॉनिटरिंग एंड अप्रेजल डायरेक्टरेट्स में डीपीआर। लेकिन पीएफआर केवल और केवल सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में जाता है, ठीक है। जब पीएफआर सबमिट होता है तो एक कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसको हेड करते हैं सीईपीओ। सीईपीओ के अंडर में एक स्क्रीनिंग कमेटी है, वो जो है वो पीएफआर को देखते हैं और उसके बाद फिर इन प्रिंसिपल कंसेंट प्रोवाइड करते हैं कि डीपीआर बना सकते हो, ठीक है। पीएफआर की स्क्रीनिंग के बाद पीएफआर कौन देखता है? एक स्क्रीनिंग कमेटी को जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी उसको देखती है और उसके बाद उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है डीपीआर बनाने के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी इज हेडेड बाय सीईपीएओ, प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर डीपीआर आता है। डीपीआर कहाँ सबमिट होता है? या तो हेडक्वार्टर में होगा या तो रीजनल ऑफिस में होगा, ठीक है। तो उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर के स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट जितने हैं वो अलग अलग चैप्टर्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर उसका अप्रेजल करते हैं। लेकिन रीजनल ऑफिस ही सारे चैप्टर्स को स्टडी करता है अगर 10,000 से कम है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो उसका अप्रेजल करता है और उसका क्लियरेंस कर देता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक सब ठीक है? डीपीआर के चैप्टर्स होते हैं ये। कोई भी डीपीआर बनता है उसमें इतने चैप्टर्स बनते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर होता है चेकलिस्ट, सेलिएंट फीचर्स, रिपोर्ट। दूसरा चैप्टर बनता है सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा चैप्टर बनता है हाइड्रोजियोलॉजी। चौथा बनता है डिजाइन का। फिर पांचवा रिजर्वायर का। फिर छठवां होता है इरिगेशन प्लानिंग कमांड एरिया। सातवां होता है फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। आठवां पावर एंड नेविगेशन। नौवां जो होता है कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। 10वां फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट। 11वां एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। 12वां एस्टिमेट। 13वां फाइनेंशियल एंड रेवेन्यूज। 14वां बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें एक है फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट। वो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हो सकता होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट डैम्स में जो जहाँ पे हाइड्रो पावर हो रहा है सर, उसमें टरबाइंस वगैरह अगर फॉरेन से हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई डैम्स बनाने के लिए कुछ हल्का टनलिंग कर रहे हैं तो मेथड ऑफ टनलिंग या कुछ मेथड से बोरिंग कर रहे हैं समटाइम्स ये फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट जो होता है ना उसमें वो फॉरेन करेंसी के लिए है बेसिकली। ये चैप्टर जो है फॉरेन करेंसी के लिए, कितना पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में करना है, डॉलर में या यूरो में, अगर कुछ चैप्टर कुछ करना है तो उसका वो वाला पार्ट इस चैप्टर में रहता है, ठीक है। कि हम जो बाहर से ले आ रहे हैं उनको डॉलर में हम लोग इतना पेमेंट करने वाले हैं या फिर यूरो में इतना पेमेंट करने वाले हैं। ये वाला पार्ट इसके अंदर रहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हैं वहां से, तो टेक्नोलॉजी तो हम लोग कोई ऐसा R&D तो कर नहीं रहे वहां से टेक्नोलॉजी जाके यहाँ से खुद मैन्युफैक्चर करने। टेक्नोलॉजी तो उसको चाहिए जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना। हम लोग तो प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि हम तो सीधे सीधे इक्विपमेंट ही ले आते हैं खरीद के, ठीक है। तो अगर कोई इक्विपमेंट फॉरेन से आ रहा है तो उसकी कितनी वैल्यू है और फॉरेन मतलब डॉलर या यूरो के टर्म में हम कितना पैसा देने वाले हैं, ये इस चैप्टर में होता है कि इतना फॉरेन एक्सचेंज में चाहिए होगा, ठीक है। ओके सर। और कुछ किसी को इसमें? ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि कंसेंट देने से पहले प्रोजेक्ट अथॉरिटीज को बोला जाता है कि आप EIA रिपोर्ट्स भी सबमिट कर दो, बना लो, सबमिट कर दो। R&R प्लान बना लो, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर प्लान बना लो, ठीक है। अलॉन्ग विद ब्रॉड कॉस्ट एस्टिमेट, उसके साथ कॉस्ट एस्टिमेट के साथ ये सारी चीजें भी बना के वो लोग सबमिट करते हैं। EIA क्या होता है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। R&R क्या होता है? रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान, ठीक है। एनवायरमेंट और डिजास्टर प्लान, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट वाले बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के
साथ लेटर ऑन सबमिट करना पड़ता है आपको ये सारी चीजें। सीडब्ल्यूसी ने टाइमलाइन दे रखी है, खुद की टाइमलाइन है सीडब्ल्यूसी की कि हम इतने दिन में कर देंगे प्रोजेक्ट। पीएफआर के लिए 8 वीक का टाइमलाइन है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। मेजर मीडियम मल्टीपर्पज कोई भी हो उसका पीएफआर का सीडब्ल्यूसी में सबमिट होने और उसका अप्रूवल मिलने में के लिए के बीच का टाइम है 8 हफ्ते। 8 हफ्ते में कर देते हैं। डीपीआर ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अगर सीडीओ है, बिग एक्रेडिटेड सीडीओ है, तो अगर उस स्टेट में एक्रेडिटेड सीडीओ है मतलब उनका सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है तो 4 महीना। अगर उनका सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसमें फिर डिजाइन को भी थॉरोली चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए 6 महीना। और रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 महीने का टाइम सीडब्ल्यूसी ने दे रखा है। ठीक है, तो सबमिशन कैसे होता है? सबमिशन एक पोर्टल बनाया है सीडब्ल्यूसी ने, ई पैम्स के थ्रू ही प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ई पैम्स का डैशबोर्ड ऐसे आता है, तो उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होता है प्रोजेक्ट अथॉरिटी के पास, उसके थ्रू वो लोग सबमिट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइनली प्रोजेक्ट हैज टू बी इंश्योर्ड इट इज वायबल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। टेक्निकली और लीगली फिजिबल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट रैशनल और जस्टिफिएबल होना चाहिए, एनवायरमेंटल सोशल एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? कोई समराइज कर सकता है आप लोगों में से? हो गया हमारा खत्म? कोई समराइज कर सकता है कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? कौन कौन से प्रोजेक्ट का प्रेजेंट सीडब्ल्यूसी में होता है? मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का। और किसका अप्रेजल होता है? फ्लड मैनेजमेंट वर्क का। और किसका अप्रेजल होता है? सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का होता है। ठीक है, और ट्रिपल आर स्कीम्स का होता है, रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर। सर ये जैसे फर्स्ट पॉइंट है मेजर मीडियम इरिगेशन एंड थर्ड पॉइंट है सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इन दोनों में सर माइनर इरिगेशन भी इसमें आ रहा है, फिर सरफेस तो हाँ, कुछ माइनर क्या है ना कि सरफेस माइनर इरिगेशन वो स्कीम्स होती हैं, इसमें क्लस्टर प्रोजेक्ट है, किसी एक स्कीम को सीडब्ल्यूसी नहीं फंडिंग करता। ठीक है, क्लस्टर स्कीम्स हैं सरफेस माइनर की। मतलब कुछ गवर्नमेंट्स के थे कि भाई माइनर स्कीम्स को भी सीडब्ल्यूसी को करना चाहिए, तो अभी महाराष्ट्र में ही कर रहे हैं 83 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को। 83 माइनर इरिगेशन का एक क्लस्टर प्रोजेक्ट्स है, उनको फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस माइनर वो जनरल जो डेफिनेशन होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर उससे अलग हाँ है हाँ, क्या? तो इंडिविजुअल जो है 2000 से कम है उसका, लेकिन वो क्लस्टर है, 83 प्रोजेक्ट का क्लस्टर है। ठीक है, तो माइनर इरिगेशन है मतलब वो 2000 से कम है, इंडिविजुअल जो है 2000 से कम है, लेकिन 83 प्रोजेक्ट का एक साथ कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्लस्टर उसका उसका एक क्लस्टर है, उसका कर रहे हैं मॉनिटरिंग और फंडिंग। ठीक है, जनरली नहीं करता है सीडब्ल्यूसी, बट स्पेशल केसेस में जैसे महाराष्ट्र पैकेज के अंदर में वो 83 सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम्स ली हुई थी। जब जब स्कीम्स ली गई तो उनका फिर गाइडलाइंस भी बनाया गया, फिर उनका अप्रेजल भी किया गया, फिर उनका फंडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एज ऑन जनरल माइनर इरिगेशन का अप्रेजल सीडब्ल्यूसी नहीं करता है। ठीक है, ट्रिपल आर हो गया, रिपेयर, इनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, और ईआरएम का और आरसीई का, इतने सारे प्रोजेक्ट का जो है अप्रेजल सीडब्ल्यूसी में करते हैं। 2000 हेक्टेयर से कम है तो हमारा माइनर इरिगेशन होता है प्रोजेक्ट। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में सीसीओ होता है तो मीडियम होता है, और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाता है। और फ्लड कंट्रोल में अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो मेजर होता है, 12.5 से 25 होता है तो मीडियम होता है, और 12.5 से कम होता है तो माइनर होता है। ठीक है, सीडब्ल्यूसी में अप्रेजल में 3 स्टेज में रिपोर्ट सबमिट होती है, एक पीएफआर, दूसरा डीपीआर और तीसरा आरसीई रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट। तो रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट कब आता है? कुछ आइडिया है आप लोग? कुछ बताएंगे आप लोग? क्या समझिए रिवाइज्ड कॉस्ट की जरूरत कब पड़ती है? डीपीआर हो गया, कॉस्ट फाइनलाइज हो गया,
ये प्रोजेक्ट इतने में बन जाएगा, तो फिर रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट की जरूरत क्या पड़ती है कब? जब डिजाइन में चेंज आता है कभी तो। ठीक है, डिजाइन में चेंज आ गया, फिर और क्या रीजन होता है? जनरली नहीं, डिजाइन में चेंज की वजह से नहीं आता रिवाइज कॉस्ट में। रिवाइज कॉस्ट में आता है डिले की वजह से। प्रोजेक्ट डिले हो गया, 10 साल डिले हो गया, 10 साल डिले हो गया, तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो होता है वो ये रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट आता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जनरली कितने दिन में पूरे हो जाते हैं? डीपीआर स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज तक कितना टाइम लगता है, आपको क्या लगता है? मतलब गेस करना है, नहीं आइडिया है तो भी कितने साल में हो जाते हैं कंप्लीट? मिनिमम 20-30 ईयर्स। मिनिमम 20-30 ईयर्स। मिनिमम तो नहीं कह सकते 20-30 ईयर, उससे कम में भी हो जाते हैं। मतलब जो और कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब 20-30 तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, 20 ईयर 30 ईयर, लेकिन मिनिमम 20-30 तो नहीं कह सकते। 10 ईयर्स अभी मिनिमम। अभी हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जीहे कथापुर सतारा में। वो पिछले 4-5 साल में, पिछले 4 साल में वो एक्सीलरेटेड तरीके से किया उन्होंने उस पे काम, और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अभी पिछले 4 से 5 सालों में। ऐसा नहीं है कि, और वो भी मेजर प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या सर वो? इरिगेशन प्रोजेक्ट है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में 20 से 30 साल लगते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जल्दी भी हो जाते हैं। वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है। तो कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगा, जैसे यूपी में था एक सरयू नहर परियोजना, अगर यूपी का कोई हो तो उनको पता होगा। सरयू नहर परियोजना, वो उसका एक डीपीआर बना था 82 में। जी जी बिल्कुल सर, पता है सर। तो वो हमारे मॉनिटरिंग में था, हम लोग के लखनऊ में थे तो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते थे। तो उसकी अलग कहानी है, कल मॉनिटरिंग के टाइम पे का बताएंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें बताएंगे सरयू नहर परियोजना की कहानी आप लोग को अच्छे से। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ तीन तरह की रिपोर्ट सबमिट होती हैं, पीएफआर, डीपीआर और आरसीई। ठीक है, पीएफआर में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोर करते हैं और वेरिएबल्स और अल्टरनेटिव ऑप्शन। डीपीआर में क्या करते हैं कि डिसीजन जो होते हैं वो लेते हैं, उसके जो प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं, कर लेते हैं। और डीपीआर जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो होता है, बैंकेबल होता है, इसके बेस पे बैंक लोन भी देते हैं। ठीक है, ये सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइंस हैं जो सीडब्ल्यूसी ने बनाई हुई हैं डीपीआर बनाने के लिए, अब डीपीआर बनाने के लिए या फिर अप्रेजल के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर मेजर मेजर और मीडियम मेजर और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है, उनका अप्रेजल सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर करता है। मीडियम प्रोजेक्ट के अप्रेजल रीजनल ऑफिस में होते हैं। ठीक है, और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का अप्रेजल सीडब्ल्यूसी में नहीं करता है, होता है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही करता है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में अगर सीसीए 10,000 हेक्टेयर से कम है और पावर कंपोनेंट भी जो है 25 मेगावाट से कम है तो उसको मीडियम प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं, और उसका अप्रेजल सीडब्ल्यूसी के रीजनल ऑफिस में होता है। अप्रेजल प्रोसेस में क्या होता है? पहले पीएफआर बनता है, पीएफआर को जो सबमिट करते हैं तो एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है हेडक्वार्टर में, एक स्क्रीनिंग कमेटी है सीपीएओ के अंडर में। वो क्या करती है? इसको स्क्रीन करती है, और उसके बाद फिर वो इन प्रिंसिपल कंसेंट देते हैं प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर के लिए। ठीक है, और उसके बाद डीपीआर स्टेज 2 में डीपीआर बनता है, और डीपीआर सबमिट होता है या तो सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में या फिर रीजनल ऑफिस में, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। और ये 14 चैप्टर होते हैं डीपीआर में, सारे से बनाने होते हैं, और उसके बाद फिर इनके साथ इनको ईआईए रिपोर्ट, आरएनआर प्लान और इन्वायरमेंटल डिजास्टर प्लान भी बना के देना होता है। ये टाइमलाइन है अप्रेजल की। पीएफआर के लिए 8 वीक का, डीपीआर के लिए अगर सीडीओ है तो 4 महीना, और सीडीओ नहीं है उस स्टेट में तो 6 महीना, और आरसी के लिए 3 महीना। सारे जो सबमिशन होते हैं वो ई पैम्स के थ्रू होते हैं। सीडब्ल्यूसी वेबसाइट पे ई पैम्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से लॉगिन करके फिर वो सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर ई पैम्स के थ्रू नहीं सबमिट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है सीडब्ल्यूसी। ये है उसका ई पैम्स का डैशबोर्ड। तो फाइनली
प्रोजेक्ट हैज टू बी इंश्योर्ड इट इज वायबल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निकल और लीगली फिजिबल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट रैशनल जो होते हैं जस्टिफिएबल होने चाहिए, और एनवायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने चाहिए प्रोजेक्ट। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस। ठीक है, थैंक यू सर। और तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ पता चला कि सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए ना क्वेश्चन। सर जो ई पेम्स है सर, तो इसका जो हाँ, यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तो ये मतलब स्टेट का पहले बनता है, फिर हमारा मतलब अकाउंट किस किसके बनते हैं सर इसमें ई पैम्स का सबमिट करना है हमको? सभी स्टेट्स को बना के दे रखे हैं, तो वो उसके थ्रू सबमिट करते हैं। ठीक है, तो अगर चाहिए तो हमारे ही तो है, उनको बोलने से वो बना देंगे। लेकिन वो सारे जो अप्रेजल के लिए जो डायरेक्टरेट है उनके पास भी उसका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे रखे हैं, रीजनल ऑफिस को भी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखे हैं। जिनके पास प्रोजेक्ट आते हैं वो उसके थ्रू अपना, वो क्या होता था कि पहले ई पैम्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले क्या होता था, लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए डाल जाते थे और उसके बाद फिर भूल जाते थे, सीडब्ल्यूसी से चिट्ठी लिखते रहते थे, लिखते रहते थे कि भाई ये कमेंट है, वो कमेंट है। वो लोग बाद में 2 साल बाद आते थे, बोलते थे 2 साल से सीडब्ल्यूसी में पड़ा है हमारा प्रोजेक्ट। ऐसे सीडब्ल्यूसी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन आते रहे कि 2 साल से हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है अप्रेजल में, और हमारा अप्रेजल ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या 4 साल से पड़ा है, 4 साल से अप्रेजल ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए ई पैम्स बना दिया गया है, बनाया गया कि भाई आप इसी के थ्रू दो, और इसी के थ्रू हम कमेंट भी देंगे, तो जिससे कि ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना रहे। ठीक है, तो फिर बाद में एलिगेशन लगाने की जरूरत ना पड़े कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने सालों से पड़ा हुआ है सीडब्ल्यूसी में, या इतने महीनों से पड़ा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहे उसमें। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में सर हम लोग अप्रेजल नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं अगर करते, कोई नहीं कर नहीं सकते, नहीं ऑप्शन है, अच्छा करते करते नहीं नहीं, है। करते नहीं और है अब माइनर। अगर ये कोई बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो स्टेट को खुद ही बोल देते हैं भाई तुम अपना कर लो, एक सर्टिफिकेट दे दो कि भाई हमने अप्रेजल कर लिया है, बात खत्म हो जाती है। ओके सर। तो जैसे एक सर, एक सरफेस माइनर इरिगेशन था सर वो, तो हाँ, उसका अप्रेजल कहाँ नहीं पर नहीं, होता है सर? देखो माइनर इरिगेशन स्कीम का किसी का अप्रेजल नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्लस्टर जी प्रोजेक्ट से उनकी फंडिंग कर रहे हैं बस। माइनर का अप्रेजल वो खुद ही करता है, स्टेट गवर्नमेंट। जी। ठीक है, माइनर और का सर ये जो पीएफआर सर हम लोग बनाते हैं, तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए भी ऊपर पहले भेजना है सर हमको? हाँ हाँ, कोई भी पीएफआर बनेगा, पीएफआर के लिए मैंने बताया ना, पीएफआर के लिए पीएफआर रीजनल ऑफिस में सबमिट ही नहीं होता। पीएफआर चाहे मीडियम का हो चाहे मेजर का हो, वो पीएफआर जो है सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में ही जाएगा, पीओ के पास। जी सीपीओ के अंडर में एक स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके पास जाएगा। फिर वो वहां से जी फिर इन प्रिंसिपल कंसेंट देते हैं कि आप डीपीआर बना सकते हैं। ठीक है, जी उसके बाद डीपीआर बनती है, फिर डीपीआर रीजनल ऑफिस में या फिर हेडक्वार्टर में जैसे भी होता है, वो उसके सीसीए के ऊपर डिपेंड है, फिर वो सबमिट करते हैं। जी ठीक है, सर पीएफआर हेडक्वार्टर में ही जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जैसे नमामि गंगा मिशन हो रहा है या क्लीन हाँ गंगा मिशन हो रहा है, तो हाँ, इसका भी जो इस टाइप के मिशंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके भी अप्रेजल सीडब्ल्यूसी करते हैं या फिर वो सेपरेट है? नहीं नहीं, उसका सीडब्ल्यूसी अप्रेजल नहीं करता, सीडब्ल्यूसी को नहीं दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है क्या क्या सीडब्ल्यूसी को क्या काम देना है, तो वो मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली नमामि गंगे वगैरह ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट का था ना, वो दूसरा ही मिनिस्ट्री था, तो वो लोग कर रहे थे। तो उसको जिला परिषद ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसमें सीडब्ल्यूसी का कोई रोल नहीं है। जैसे नमामि गंगे वाला है या एनआरसीडी का प्रोजेक्ट है, तो वो फंड हमारी मिनिस्ट्री कर रही है उसको, प्रोजेक्ट्स में। लेकिन वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टरेट है वहां पे वो लोग डायरेक्टली मिनिस्ट्री कर रही है, वो सीडब्ल्यूसी के थ्रू नहीं हो रहे हैं। तो जो चीजें सीडब्ल्यूसी के थ्रू नहीं हो रहे हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है सौरभ जी। जी जी सर,
किसी और का कोई डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहता है प्लीज, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं सेशन। ये राजस्थान में एक लूनी रिवर जो है हाँ सर, स्टार्टिंग पॉइंट से जाके उसी रेगिस्तान में मिल जाती है पानी, वहाँ का अरेबियन सी में नहीं पहुंच पहुंच पाता था। जी जी। तो सर उसकी वजह से नदी की क्षतिग्रस्त हो ही रही, बाकी रेगिस्तान वगैरह भी है। क्या हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? इंदिरा इंदिरा कैनाल ही एक वहाँ है जो हिमाचल से आ रही है वहाँ के लोगों के ड्रिंकिंग के लिए। जी तो उस पर सर कोई प्रोजेक्ट वहाँ नहीं मतलब ऐसा चल रहा है कि मतलब जो रेगिस्तान वगैरह उसको दूर किया जाए, इरिगेटेड एरिया बनाया जाए। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि राजस्थान में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पूछते तो बिल्कुल महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूँ। राजस्थान में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर चाहिए तो एमएनडे जयपुर से पूछ सकते हैं कि वहाँ पे सेंट्रल का कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं और वी विल सी यू टुमारो इन मॉनिटरिंग ऑफ जी सर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू डिलीवरिंग सौरभ दीज जी। 2 सेशंस। काफ़ी आपने जो है सिंपल टर्म्स में जो है पूरा हमारा अप्रेजल का जो प्रक्रिया है सीडब्ल्यूसी में आपने समझाया हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और जैसा कि रिस्पॉन्स आ रहा है पार्टिसिपेंट से, इट सीम्स दिस सेशन हैज़ बीन वेल टेकन एंड थैंक यू सो मच सर अगेन फ्रॉम द एनडब्ल्यूए साइड। एंड ऑल्सो आपका सर कल भी 2 सेशंस रहेंगे मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर में। जी सो वी विल बी हैविंग सर अगेन विद अस टुमारो। Again, morning sessions, 2 sessions will be on the project monitoring. So thank you so much sir for delivering today's sessions and we'll meet again tomorrow. थैंक यू Thank सौरभ you जी, sir. थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो। Okay sir, thank you.